these are topics that we will be covering today. This will include some recap from the previous class, which will include merge versus rebase topic, and there are some doubts in your remote and fetch and pull, so we will also look into that. Then we will move to GitHub Pages and Vim Editor. Then there will be some topics of HTML modifications like stash and amending, and then we will end the session with revert and reset. So let's move to the first topic that we left in the last class. It was jittery base. So let's take a look at the what I taught you git merge. So in the git merge, we saw that we can copy the changes that we did in a feature branch into our master branch. So does everyone know that there any problem in this? Please tell me fast so I can just clarify it once. That this will after merge there will be a merge commit that will telling that this branch was merged into the master tip, and all these changes will then after merge, then all these changes will be also showed in your master branch too. So everything is okay with that? So okay, so I will move to the jittery base. So bolo. Okay, so we will move to it. So I told you here that there were two ways to move your changes from a feature branch to your master branch. First was merging that I already told, and then there is rebasing. So what is rebase? What is Git rebase? So Git rebase is also similar to Git merge. It take all the changes commits from the feature branch and put them on the top of the base branch. सो इसका मोटिव भी सेम है. ये क्या करता है, फीचर ब्रांच से तुम्हारे चेंजेस लेगा और एक तुम्हारी जो टारगेट ब्रांच होगी जो कि जो नॉर्मली मास्टर होती है उसमें जाके रख देगा. ठीक है, मतलब चेंजेस को एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर करेगा, ये बेसिकली मतलब कॉपी करेगा, जो भी तुम समझो. ठीक है, और दूसरा पक्ष क्या है, unlike merging, rebasing flattens the history because it transfers the completed work from one branch to another. Okay, I will show you this later. एंड देन इन दिस प्रोसेस अनवांटेड हिस्ट्री गेट एलिमिनेट. तुम देखोगे ये मर्ज से थोड़ा डिफरेंट है, मतलब मोटिव एक ही है कि इसको चेंजेस दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर करने हैं, बट इससे क्या होगा, हिस्ट्री क्लीन रहेगी. ये थोड़ा बेटर वर्जन है गिट मर्ज का कुछ केसेस में. मतलब इसके भी डिसएडवांटेज हैं, बट बेसिकली देखा जाए तो एडवांटेज ज़्यादा है. तो ये जिट मर्ज का थोड़ा अपडेटेड वर्जन है. ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, तुम्हारी जो हिस्ट्री होती है ना वो क्लीन रहती है काफ़ी. मतलब तुम मर्जिंग करोगे तो देखो यहाँ पर काफ़ी सारी मर्ज कंफ्लिक्ट इंक्लूड रहेंगी. मतलब जब तुम किसी और में कंट्रीब्यूट करोगे तो देयर विल बी लॉट्स ऑफ मर्ज कंफ्लिक्ट्स देयर, एवरीवन विल बी मर्जिंग हिज मास्टर इनटू द मेन. देन देयर विल बी branching going from here. Like I can show you a graph. Git merge messy graph. Like this, just see this, what happens with merging. Like suppose this is a master branch, your master branch, and there are lots of branching coming, and these are merging, and it's very hard to visualize the history in the JIT. So there this is called messy history. There were branching and commits coming all over the for all of branches, and you can't it's very difficult to understand these previous history. So there is a updated version called Git rebase, which what it will do. Let's see. So what it will do, there is a master branch. First of all, there is no these commits. There only one commit, common base. From there, what you did, you created a technical tip feature branch. You created a feature branch and you do your feature. You completed a feature and the feature was successful. And now you want to merge it into the master branch. But in that time period, while you was implementing the feature, your master got updated too. So it come forward to two commits. सो ये आगे आ जाएगी. ठीक है, तो अब तुम्हें क्या करना है, फीचर को इसमें मर्ज करना है. ठीक है, मतलब इसके चेंजेस को इसमें लाना है, वो भी हिस्ट्री क्लीन रखते हुए. तो रिवेस क्या करता है, ये तो तुम्हारी मास्टर है ही है. ठीक है, ये तीनों कमिट मास्टर के हैं, और जो तुम्हारी हिस्ट्री के जो तीन कमिट्स हैं वो उठा के उन्हें टॉप पर रख देगा तीनों को. मतलब ये रिबेसिंग एक पूरा प्रोसेस है. इसमें इस पॉइंट तक अचीव करने के लिए हमें 2 बार रिबेस को मतलब वो एग्जीक्यूट करना पड़ता है, और उस पूरे प्रोसेस को भी रिबेस ही बोलते हैं. बट तुम समझ जाओ कि रिबेस करके आ रहा है, यहाँ से हिस्ट्री क्लीन कर रहा है. पहले क्या था, तुम्हारा काफी मैसी था. इधर देखो, ये रहा, ये क्या कर रहा था, ये कमिट, फिर यहाँ से यहाँ पे आ रहा था. ठीक है,
मतलब ये मर्ज कमिट भी एक्स्ट्रा बना रहा था, जो कि लाइक कोई नीड नहीं थी, कोई इसमें चेंजेस नहीं थे, बस वो बता रहा था, सिंबलाइज कर रहा था कि ये यहाँ पर मर्ज हुई है ब्रांच, तो उस कमिट की कोई ऐसी ऐसा नीड नहीं थी ज्यादा। और रीबेस क्या कर रहा है, कोई ऐसी एक्स्ट्रा कमिट नहीं है, केवल जो चेंजेस हैं उसको उसने उठा के सीधे आगे रख दिया, ठीक है। मतलब सीधे की स्ट्रीट रही, क्लीन हिस्ट्री रही, सारी कमिट जो पहले थी वो स्टेट लाइन में है, यहाँ भी स्टेट लाइन में है। और यहाँ पर तुम ये मत समझना कि ये कमिट उठा के डायरेक्ट कंट्रोल एक्स और कट पेस्ट कर दिए, ये ब्रांच अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। मतलब यहाँ पर जो भी है ये मास्टर अपडेट है, मतलब मास्टर अब ऐसी है, जो तुम्हारी फीचर होगी वो अभी भी ऐसी होगी। मतलब दिखा देता हूँ ऐसे मूव करके थोड़ा, थोड़ा आगे हो गया, अ, थोड़ा ऐसे, मतलब फीचर ब्रांच अभी भी तुम्हारी ऐसी ही एग्जिस्ट कर रही होगी, बस मास्टर तुम्हारी अपडेट हो जाएगी ऐसे, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज मत होना कि हमारी फीचर ब्रांच डिलीट हो गई है, ठीक है। अरे तुम गलत मूव कर दिया। अरे फिर से वही हो गया, चलो कंट्रोल जेड कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि ये ब्रांच डिलीट नहीं होती है, बस ये जो 3 कमिट हैं वो इस मास्टर में टॉप पर आ गए हैं, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस है रीबेस का। वो हो कैसे रहा है वो मैं बताऊंगा तुम्हें, वो अभी मैं बताऊंगा तुम्हें वो हो कैसे रहा है जनरली। तो let's see how it is internally working rebase. So let's move to the header. Hmm. I will show you maybe a practical too if needed, but let's see here. Suppose my master branch was here. There is one commit, initial commit, which was on my master branch. ठीक है, मैं आगे बढ़ा, मैंने एक और कमिट किया मास्टर ब्रांच पर। हेलो, एनी प्रॉब्लम्स? हैं? क्या पागल हो गए? सोता वोता नहीं है लोग? अपने सीनियर्स क्लास ओके, लेते हैं थोड़ी। अगम साइज ज़रा तुम्हारा माइक ऑन है, म्यूट कर लो प्लीज। मैं गाना बजा रहा हूँ, कनेक्ट हो गया? अगम, राघव किक कर दो, म्यूट कर सकते हैं को होस्ट, उसको म्यूट कर दो। कंटिन्यू करोगे? सर माइक ऑफ है आपका शायद। ओ सॉरी। तो लाइक wherever, so लाइक दे दो, मेरी मास्टर ब्रांच का कमिट है, इसको मैंने नेम दे दिया M1, इसको नेम दे दिया M2, और ये फिर मैंने यहाँ से फीचर ब्रांच बना ली एक, ठीक है। M2 के बाद से मेरी एक कमिट है फीचर ब्रांच पे, 2 कमिट है, तीसरी कमिट भी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरा पूरा फीचर है जिसे मैंने 3 पार्ट में कंप्लीट कर दिया, ठीक है। एनी प्रॉब्लम्स? ओके। सो अब क्या हुआ, तुम रीबेस अभी रुक जाओ। हाँ, तो जब तुम फीचर इंप्लीमेंट कर रहे थे, सपोज तुम्हारी मास्टर अपडेट हो गई, ठीक है, 2 कमिट से मान लो अपडेट हो गई, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, वो तो अपडेट तो कर लिए तुमने, अपनी मास्टर अपडेट कर ली, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तुम्हें क्या करना है, ये चेंजेस तुम्हें अब मास्टर ब्रांच में लाने हैं, ठीक है। तो तुम एक तो मर्ज कर सकते हो, उससे क्या होगा, एक मर्ज कमिट बन जाएगी और प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो पर उससे क्या होगा, मिस्ट्री काफी मैसी होगी, ग्राफ जब शो करेंगे तो वो मास्टर ब्रांच का ऐसे ही ग्राफ दिखाएगा, मतलब यहाँ से मर्ज ब्रांचिंग हो रही है यहाँ से, ठीक है। ये कमिट उसमें नहीं दिखाएगा। बट अब रिवेसिंग में क्या होता है, ये क्या करेगा, पहले नेम दे देते हैं सबको, F1, F2, F3, ये अपडेट 1 है मान लो, जो रिमोट से लिया हमने पुल करके, और ये अपडेट 2 है, ठीक है। तो रिबेस में क्या हो रहा है, M1, M2, दिस U1, मतलब ये प्रोसेस है पूरा, फाइनल रिजल्ट है हमारा रिबेस का, जो हम चाहते हैं कि हमारी हिस्ट्री ऐसी दिखे, ठीक है। वो जो कि हम फाइनली अचीव करेंगे एंड में। ये U3 है, सॉरी U3 नहीं है ये सॉरी, ये F1 है, और यहाँ पर F2, यहाँ पर F, और यहाँ पर F3 आ गया, ठीक है। यहाँ पर F3 आ गया,
ठीक है, F1 है, ये F2 है, ये F3 है। तो ये हमारी पूरी रीबेसिंग के बाद हिस्ट्री होगी जो हम फाइनल रिजल्ट अचीव करेंगे। तो अब देखते हैं वो अचीव कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमें 2 बार रीबेस करना पड़ेगा। इस रिजल्ट के लिए पर्टिकुलर देख लेना, ऑर्डर यहाँ पर मैटर करता है, ठीक है। M1 ऑर्डर क्या ऐसा चला था, हमने सबसे पहले M1 कमिट किया, M2 कमिट किया, फिर उसके बाद हमने फीचर ब्रांच मूव करे, हमने F1 कमिट किया, F2 कमिट किया, F3 कमिट किया। अब हम यहाँ पर आ गए, ठीक है, हमने ये कमिट कर दिए। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ये U1 U2 कमिट को फैच कर लिया, मतलब पुल कर लिया, ठीक है। तो अब हमें फाइनल हिस्ट्री ऐसी चाहिए जो कि हम चाहते हैं, क्योंकि एक तो हमारा ये ओरिजिनल कमिट रही है, ये फाइल अपडेट आ जाए जो हमने रिमोट से लिया है, और फिर हमारे चेंजेस आ जाए टॉप ऑफ द कमिट। तो इससे काफी हिस्ट्री क्लीन लग रही है और विजिबल भी लग रही है और अंडरस्टैंडेबल भी है ज़्यादा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो रिबेस का स्टार्ट करते हैं। तो पहले कमांड्स देख लेते हैं। तो रिबेस कमांड क्या है। तो रिबेस करने के लिए 2 ब्रांचेस को सबसे पहले क्या करता है, हमने चेकआउट करना पड़ता है, जिसका हमें रीबेस का मतलब क्या है, ये 2 वर्ड से बना है। रीबेस मतलब हम एक ब्रांच का बेस चेंज कर रहे हैं, मतलब पहले उसका बेस कुछ और था, अभी उसका बेस कुछ और है। इधर जो हमने फीचर ब्रांच बनाई है ना, कहाँ गई, अभी जो हमने ये फीचर ब्रांच बनाई है ना, ये वाली, इसका बेस ये कमिट है, ठीक है। मतलब ये यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है। तो इस ब्रांच का बेस ये कमिट है अभी, जो सबसे पहली कमिट होगी, मतलब जिससे वो डाइवर्ज हो रही होगी, ठीक है। इस ब्रांच का बेस ये है। तो अगर हमें इस ब्रांच को रिबेस करना है, मतलब जहाँ से बनी है, तो लाइक इसका बेस हमें यहाँ से यहाँ करना है। देखो इसमें अंतर क्या है दोनों, इसका अगर मैं बेस चेंज कर दूं, फीचर ब्रांच का मैं मतलब M2 से करके U2 कर दूं, तो मेरी हिस्ट्री कैसी हो जाएगी। देखो मेरी हिस्ट्री हो जाएगी M1 M2 U1 U2, और फिर आएगा F1 F2 F3। तो मेरी हिस्ट्री कुछ ऐसी हो जाएगी, देख लो कि मेरा पहले यहाँ पर, मतलब ये मेरा बेस था M2 पहले। अब मैंने क्या किया, फीचर ब्रांच को रीबेस कर, मतलब ये पूरा रीबेस कर दिया, मतलब ये पूरा इतना हिस्सा जो रीबेस कर दिया। तो M1 M2 U1 U2, तो ये F1 F2 F3। तो इस प्रोसेस में हुआ क्या है, बस इसका बेस चेंज हो गया, मतलब F1 F2 F3 कमिट तुम्हारी एज इट इज है, बस इस ब्रांच का बेस बेस M2 से हटके U2 आ गया है, ठीक है। तो इसलिए हम इस प्रोसेस को रिबेसिंग कह रहे हैं, मतलब इसमें हम ब्रांचेस का बेस चेंज करते हैं, ठीक है। तो बेस कमिट चेंज हो रहा है, तो इसमें और इसमें यही डिफरेंस है। और देखोगे तो ये सेम ही है, मतलब ये जो सिंपल जा रही है ये लाइन, ये सेम ही है, ये सिंगल लाइन में कमिट आ रहा है। बस अभी हम इसको एक और बार मर्ज या रिबेस कर देंगे, तो वो भी तुम समझ जाओगे, मैं एंड में बताऊंगा फास्ट फॉरवर्ड मर्ज क्या होता है। तो उससे तुम समझ जाओगे ये स्ट्रेट लाइन कैसे हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज रीबेसिंग है। हाँ, अभी 2 ब्रांच रहेगी या एक ही हो जाएगी रीबेस के बाद? 2 ही रहेंगी, मैंने बोला ना, स्टार्टिंग में ही बोला था कि मेरी ब्रांच डिलीट नहीं होगी, मेरी ब्रांच एज इट इज ही रहेगी रीबेसिंग के बाद, ठीक है। बस वो यहाँ से कमिट उठ के यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। ओके सर। तो कमांड देख लेते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, चेकआउट करना पड़ता है ब्रांच पे जिसका बेस तुम्हें चेंज करना है, ठीक है। मतलब हमें, अगर मान लो हमें इस ब्रांच का बेस चेंज करना है, फीचर ब्रांच का, तो पहले हमें इसको चेकआउट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ से यहाँ जाने के लिए पहले हमें फीचर पर चेकआउट करना पड़ेगा, क्योंकि हम इस प्रोसेस में क्या कर रहे हैं, फीचर ब्रांच का बेस चेंज कर रहे हैं M2 से U2 पे। तो बेस चेंज किसका कर रहे हैं, फीचर ब्रांच का कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले फीचर ब्रांच पर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, जिट चेकआउट ब्रांच टू बी रिबेस, जिसको मतलब जिसका बेस चेंज करना है, ठीक है। अब दूसरी कमांड करेगी सिंपल, जिट रिबेस बेस ब्रांच नेम, मतलब किसके अकॉर्डिंग तुम बेस चेंज कर रहे हो, मतलब जिसमें बेस है तुम्हारा उस ब्रांच का नाम। बेस किस ब्रांच में है, हमारे मास्टर ब्रांच में, ठीक है। तो हम उस ब्रांच को लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है मैंने जिट रिबेस मास्टर। तो अब मैं प्रोसेस दिखा देता हूँ पूरा कैसे हो रहा है। ये रहा। ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट करें। हाँ, सपोज कमिट से ही स्टार्ट करते हैं। हम्म, ये U1, ये U2, ये F1 F2 F3, और ये इधर आ गया, ठीक है। लाइन का थोड़ा देख लेना, वो मतलब समझ जाना ये क्या क्या है, M1 M2 U1 U2 F1 F2 F3, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने बताया अभी, चेकआउट कर लेंगे पहले फीचर ब्रांच पर, ठीक है।
और मैं फाइनल रिजल्ट की तरफ बढ़ रहा हूँ। मेरा फाइनल रिजल्ट क्या था रिवेसिंग के बाद का, ये चीज मुझे ये चीज अचीव करनी है मास्टर ब्रांच में, ठीक है। तो मैं उसका प्रोसेस बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। म्यूट कर लेना प्लीज, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, पहले चेकआउट कर जाऊंगा फीचर ब्रांच पे, वो तुम अपने आप कमांड देख लेना। यहाँ पर मैं सीधे समझ लो कि मैं फीचर ब्रांच पर हूँ और मैं लिख रहा हूँ गेट रीबेस। सॉरी टेक्स्ट बॉक्स किधर गया। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ गेट रीबेस और देन मास्टर, ठीक है। मैं मास्टर के हिसाब से अपना बेस चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद मेरा रिजल्ट क्या आएगा। तो रीबेसिंग कैसे होती है मैं तुम्हें बता देता हूँ। रीबेसिंग क्या होता है, सबसे पहले वो क्या करता है, जिस ब्रांच से पहले वो कॉमन वो देखता है कि किस पॉइंट से डाइवर्ज हो रही थी, मतलब कॉमन बेस देखता है पहले दोनों में क्या था। मास्टर ब्रांच में आखिरी कॉमन बेस क्या था, ये। और इधर क्या था, इसका भी कॉमन बेस क्या था, ये। तो मतलब इन दोनों का कॉमन बेस यही कमिट है, M2 इन दोनों का कॉमन बेस है, मतलब यहाँ से डाइवर्ज हो रही है मेरी फीचर ब्रांच। तो मेरा मतलब जो कॉमन बेस है जो दोनों में प्रेजेंट है, जो लास्ट कमिट है दोनों में प्रेजेंट, वो कॉमन बेस होगा मेरा, जो कि है M2, ठीक है। तो इसका बेस M2 है और इसका बेस वैसे तो ये है, बट कॉमन इसके साथ देखा जाए तो वो ये है, ठीक है, लेटेस्ट वाला। तो कॉमन बेस हमारा M2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, पहले सबसे पहले कॉमन बेस फाइंड किया था, कॉमन बेस के हिसाब से फिर क्या होता है, कॉमन बेस के आगे चेंजेस होते हैं। अब देखो, जिस ब्रांच से हम ले रहे थे ना बेस मास्टर, मतलब फिर क्या होता है, वो आगे बढ़ता है, मतलब सबसे पहले मतलब जो लेता है ना कमिट्स को, ये मास्टर के हिसाब से लेगा। मास्टर में जितनी कमिट्स है ना पहले उनको रखेगा, मतलब पहले M1 था, फिर M2 था, ये फिर यहाँ से ये ब्रांच को हटा देता है। मतलब रीबेसिंग में पहले तो कॉमन बेस फाइंड करा, कॉमन बेस मिल गया, उसके बाद से फिर ये इस ब्रांच को हटा देगा, मतलब अभी ये ब्रांच यहाँ से ओरिजिनेट नहीं हो रही है, ये समझ लो अंदर इंटरनल प्रोसेस चल रहा है और यहाँ पर ब्रांच नहीं है। फिर देखेगा मास्टर ब्रांच में कितनी और कमिट्स हैं आगे, जितनी कमिट्स होंगी वो सब पर आगे चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि बेस के लेटेस्ट तक जाएगा, ठीक है, पूरा मतलब जितनी भी कमिट्स होंगी सबसे आगे पहुंच जाएगा। तो U1 पर जाएगा, फिर देखेगा आगे और कमिट हैं तो वो वहां पे जाएगा, फिर देखेगा आगे कुछ नहीं है तो बस रुक जाएगा, ठीक है। तो ये पहले किसकी कमिट चेक कर रहा है ये देख लेना, कॉमन बेस के बाद उसकी चेक कर रहा है जिसके हिसाब से तुम्हें रीबेस करना है, मतलब बेस ब्रांच में जिसमें बेस प्रेजेंट है उसकी कमिट को फॉरवर्ड बढ़ा रहा है, ठीक है। एनी प्रॉब्लम्स, ओके। तो वो क्या है इसके, इसमें मास्टर जो मतलब जो समझ है ना, जो कमांड में हम यहाँ ब्रांच लिखते हैं ना जिसके हिसाब से बेस चेंज कर रहे होते हैं, उसकी कमिट्स को पहले मतलब रखता है, मतलब एक तरीके से कहते हैं तो पहले रखता है, ठीक है। अब क्या करेगा, अब इसमें कमिट्स खत्म हो गई, तो अब जिस ब्रांच में है उसकी सारी कमिट्स को रख देगा, ठीक है। अभी हम किस ब्रांच में, फीचर ब्रांच में, तो क्या करेगा, ये ब्रांच है ना, इस ब्रांच को इस कमिट के आगे से ऐसे एज इट इज रख देगा उठा के। समझ लो ये पॉइंटर जो था ना ये वाला, उसने यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया। और जो इंटरनल प्रोसेस था वो क्या था, पहले कॉमन बेस फाइंड करता है, मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट बॉक्स में। इंटरनल प्रोसेस क्या है, फर्स्ट है कॉमन बेस, देन मूव टू पुट कमिट्स ऑफ बेस ब्रांच, मतलब जिसके हिसाब से तुम अब बेस चेंज कर रहे हो जो कि मास्टर है, एंड देन पुट कमिट्स ऑफ फीचर ब्रांच, मतलब जिसको तुम्हें रिबेस करना है, ठीक है, ब्रांच टू बी रीबेस जो तुम समझ जाना, ठीक है। तो ये 3 प्रोसेस हो रहे हैं, वो इनको याद रखना है, इससे अगला केस भी समझ में आएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हुआ, अब हमारे पास अब जो हमने ये स्टेप एग्जीक्यूट किया ना उसके बाद अब हमारी हिस्ट्री ऐसी हो गई, ठीक है, ऐसी हो गई। अरे टेक्स्ट बॉक्स है, उसके बाद हमारी हिस्ट्री कैसी होगी, ऐसी होगी, ठीक है। इस ब्रांच को कमांड को एग्जीक्यूट करने के बाद अब हमारी हिस्ट्री कैसी होगी, ब्रांच हमारी ये मास्टर है, ये M1 है, ये M2 है, ये U1 है और ये U2 है, और सॉरी ये यहाँ पर F1 F2 F3। अब हमारी कंडीशन कुछ ऐसी है, ठीक है। यो जब तुम जेड स्टेटस भी चेक करोगे तो अभी तुम्हें यही दिखाएगा, ठीक है, मतलब पहले ये दिखाएगा फिर बाकी कमेंट्स दिखाएगा। अब पर अभी भी मास्टर ब्रांच में हमारे ये चेंजेस नहीं आए, ये हमारी फीचर ब्रांच है, ये हमारी मास्टर ब्रांच है, ठीक है। तो मास्टर ब्रांच में अभी भी फीचर वाले चेंज नहीं आए, केवल फीचर ब्रांच का भी हमने बेस चेंज किया, ठीक है। अब हमें अगर फीचर के चेंज मास्टर में चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, देखो इसमें प्रोसेस में देखो किसकी कमिट्स किस में आ रही हैं। U1 U2 कमिट्स जो पहले फीचर में नहीं थी, हमने उस ब्रांच को जो फीचर थी उसको रिबेस करा मास्टर के हिसाब से, तो देखो फीचर ब्रांच में अब U1 U2 कमिट आ चुकी हैं, ठीक है। फीचर ब्रांच में ये सातों कमिट होंगी, बट मास्टर ब्रांच में केवल ये 4 कमिट होंगी, ठीक है।
तो अब हमें अगर ये तीनों कमिट भी इसमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, मतलब दूसरी ब्रांच को दूसरे पर रिबेस कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, इस बार मास्टर को इस पर रिबेस कर देंगे, फीचर पर। वो भी करके दिखा देता हूँ मैं तुम्हें। फीचर पर रिबेस करेंगे तो प्रोसेस सेम रहेगा, मतलब पहले चेकआउट करना पड़ेगा मास्टर पर, टेक्स्ट एडिटर पहले हमें जाना पड़ेगा, इसके बाद चेकआउट मास्टर, देन उसके बाद गेट रिबेस फीचर। मतलब हम इसमें क्या कर रहे हैं, कमांड देख लेना, यहाँ से देख लो पहले, गेट चेकआउट ब्रांच टू बी रिबेस, जिसको हमें रिबेस करना, मतलब जिसका हमें बेस चेंज करना है, ठीक है। अभी बेस मास्टर का क्या है, U2 है, ठीक है। हमें इसका बेस क्या करना है, ये लाना है F3, क्योंकि फिर लेटेस्ट कमिट ये तीनों आ जाएंगे। अगर F3 इसका बेस हो गया तो ये तीनों कमिट्स आ जाएंगी, मतलब समझ जाओगे, ठीक है। इसमें आ चुकी है, तो हमने इधर लिख दिया गेट चेकआउट मास्टर, और फिर इधर है ब्रांच, मतलब जिसमें बेस कमिट हमारा प्रेजेंट है उस ब्रांच का नाम, ठीक है। तो बेस कमिट हमारा किस में प्रेजेंट है, फीचर ब्रांच में, तो हमने लिख दिया गिट रिबेस फीचर। तो अब देखो इंटरनल प्रोसेस कैसे हो रहा है, वो भी बता देता हूँ मैं तुम्हें जल्दी से। ये कमांड लिखी है हमने यहाँ पर, इस प्रोसेस के बाद, अरे सॉरी यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है ठीक है। तो अब इसके बाद क्या होगा, M1 M2 U1 U2, उसके बाद देखो अब क्या होगा, मैंने क्या बताया था सबसे पहले, रीबेस करने के बाद क्या होगा, कॉमन बेस ढूंढा जाएगा। दोनों ब्रांच में कॉमन बेस आखिरी कौन सा है, U2 है, ठीक है। अभी एक रीबेस करने के बाद देखो इसका लास्ट ये है, दोनों में कॉमन ये वाला, तो ये होगा कॉमन बेस U2 तुम्हारा। इसके बाद अब कौन सा प्रोसेस होगा, कॉमन बेस मिल गया हमें। अब इसके बाद मैंने यहाँ बताया था कौन सा प्रोसेस होगा, जो भी बेस ब्रांच की कमिट होंगी, मतलब जो बेस ब्रांच होगी उसके कमिट को रखेगा। इस बार बेस ब्रांच कौन सी है, हमारी फीचर, इधर देखो बेस ब्रांच नेम, ठीक है। तो इस बार हमारी बेस ब्रांच कौन सी है, फीचर, जिसमें भी हमारा बेस प्रेजेंट है। तो सबसे पहले क्या करेगा, वो इसके कमिट्स को आगे रखेगा, ठीक है, फीचर ब्रांच के कमिट्स को। हम इसका चेंज कर रहे हैं और इस बार वो सबसे पहले फीचर ब्रांच के कमिट्स को आगे रखेगा। तो वो क्या करेगा, यहाँ पर जब तक आ रहे हैं कमिट्स को रखते जाएगा। यहाँ पे F1 रखा उसने, F2 रखा उसने, F3 रखा, ठीक है। ये रख दिए, अब इसके आगे कोई कमिट्स नहीं है, यहाँ रुक जाएगा। फिर क्या करेगा, ये आगे का प्रोसेस क्या है, पुट्स कमिट्स ऑफ फीचर, मतलब फीचर के नहीं, जो भी तुमने जिसके हिसाब से तुमने, मतलब जिसको रिवेस किया है, मतलब जिसका बेस चेंज किया है, ये वो है वाली ब्रांच है जिसका बेस चेंज किया है, ठीक है। तो वो समझ जाना। तो इस बार हम किसका बेस चेंज कर रहे हैं, मास्टर का बेस चेंज कर रहे हैं। तो मास्टर में अब आगे की कमिट्स कुछ है ही नहीं, क्योंकि जो कॉमन बेस था वही आखिरी कमिट थी, आगे कोई कमिट नहीं है, तो यहाँ पर आगे कोई कमिट आएगी ही नहीं। तो बेसिकली प्रोसेस यहीं पर, मतलब आगे कोई कमिट नहीं है तो वो कुछ रख ही नहीं सकता, तो प्रोसेस यहीं टर्मिनेट हो जाएगा। और जो तुम्हारी मास्टर ब्रांच है वो देखो ऐसी हो गई है फाइनली। इस रीबेस के बाद तुम्हारा ये M1 M2 U1 U2 देन F1 F2 F3, ठीक है। तो इससे क्या हुआ तुम्हारा, अभी भी तुम्हारी फीचर ब्रांच यहीं पर ही है, ये इस कमिट के बाद से तुम्हारी फीचर ब्रांच एज इट इज है अभी, ठीक है। ये अभी डिलीट नहीं हुई है, बस इससे हमने इसका बेस चेंज कर दिया है, जो कि M2 से उठा के U2 कर दिया था, ठीक है। तो फीचर ब्रांच अभी तुम्हारी यही है, बट देखो तुम्हारी मास्टर ब्रांच क्लीन हो गई, बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। उस पर कोई मर्ज कमिट नहीं है और कोई इंडिकेशन नहीं है मर्जिंग का, ठीक है। बस वो तुम्हारा जो चेंजेस हैं वो इधर आ गए, ठीक है। देखो M1 M2 U1 U2 F1 F2 F3, तो तुम्हारा फीचर ब्रांच वो मास्टर ब्रांच हमारी अपडेट हो गई, तुम्हारे चेंजेस आ गए और तुम्हारी हिस्ट्री भी क्लीन रही। तो ये काफी बढ़िया प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये था ओवरऑल रीबेस, मैंने तुम्हें पूरा इंटरनल प्रोसेस बता दिया कैसे होता है, और लाइक हिस्ट्री भी क्लीन रहती है। तो अब जल्दी से बता दो, डाउट हो तो किसी को। सर मुझे थोड़ा क्यों और सर? डाउट है। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। मतलब जब हम सर ये पूछ रीबेसिंग रहे थे, यहाँ पे जो वो थर्ड पॉइंट था ना, देन पुट कमिट ऑफ फीचर ब्रांच, मतलब वो कैसा एग्जांपल, मतलब उसको देके समझाइए ना। मतलब वो आपने पॉइंट ऊपर में लिखा था ना, 3 पॉइंट्स, उसमें थर्ड वाली पॉइंट थी ना, कि मतलब अगर और कमिट होता तो उसको वहां पर रखते, हाँ देखो लास्ट में बताता वो हूँ, वाले। देखो लास्ट इस जो हमने पहला वाला रिबेस किया था वो कैसे किया था, कॉमन बेस ढूंढा, M2 था, ठीक है, M2 रखा। उसके बाद जिस ब्रांच को, मतलब जिस ब्रांच में बेस प्रेजेंट है उसके कमिट रखे। तो लास्ट टाइम बेस हमारा किस में प्रेजेंट था, U2 था हमारा बेस, क्योंकि हमें U2 अपडेट करना था ना। हम फीचर को रिबेस कर रहे थे और किसके हिसाब से कर रहे थे, मास्टर के हिसाब से। तो बेस हमारा मास्टर में था, ठीक है। तो इसमें कॉमन पहले ढूंढा इसने, वो क्या कहते हैं, कॉमन बेस ढूंढा। फिर उसके बाद मास्टर के हिसाब से रिबेस कर रहे थे, तो पहले मास्टर की कमिट रखी जाएगी, ठीक है। तो उसने क्या किया, M1 M2 को रखा, मतलब वो कॉमन बेस था M2, वहां से उसके बाद से स्टार्ट होगा, उसने U1 U2 को रख दिया, ठीक है, U1 U2 ये रख दिए। फिर उसके बाद क्या किया उसने, जिस ब्रांच पर, मतलब जिसको रिबेस कर रहे थे उसकी सारी कमिट एज इट इज रख दी।
मतलब पिछली बार रीबेस किसको कर रहे थे, फीचर को, तो उस पर 3 कमिट्स फीचर थे, को, अच्छा अच्छा, ठीक है, तो ओके। उसने 3 फिर वो, कमिट रखे। हाँ हाँ, इस तो केस क्लियर हो में गया वो। एक भी, हाँ ठीक है, और सर तो अगर हम मास्टर को फीचर पे रीबेस कर दें तो पहले फीचर के चेंजेस रहेंगे फिर मास्टर के उसके ऊपर आ जाएंगे, F1 हाँ F2 मतलब, F3 देन U1 U2। हाँ हाँ हाँ, मैं नहीं मतलब ये कह रही हूँ कि मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही रीबेस फीचर कर दूं बिना मास्टर करे, ये कह रही हूँ क्या? नहीं सर, अगर हमें कॉमन बेस मिलने के बाद हम फीचर को मास्टर पे रीबेस करने की जगह जो मास्टर के चेंजेस हैं उनको फीचर पे रीबेस कर दें। हाँ तो मतलब यही प्रोसेस होगा। सर मुझे ऑर्डर में थोड़ा डाउट है। तो सबसे पहले जो मेन ब्रांच थी वो चल रही थी, M2 उसका बेस था। फिर वहां से हमने हाँ, एक फीचर ब्रांच स्टार्ट की, ठीक है, और हम्म, फिर उसमें 2 चेंजेस हुए U1 U2 मेन ब्रांच में। और फिर हमने मतलब वो fetch किया। अपडेट हो गई, हमारी मास्टर ब्रांच थी वो हाँ अपडेट हो गई, हाँ ठीक हाँ, है, फिर और फिर हमने फेच किया तो हमें U1 U2 चेंजेस अच्छे लगे तो हमने सोचा कि हाँ, U2 को अपना मैच बेस कर बना। लो, हाँ ठीक है, बिल्कुल यही सही। हो रहा है ना मतलब? हाँ हाँ यही हो रहा है, हाँ इंटरनली यही ओके, हो रहा है, तो और फिर तुम हमने मतलब, U2 को बनाया बेस और फिर उसके बाद हाँ हमने F1 F2 F3 कमिट्स किए और फिर अब हमें उस F1 F2 F3 को मेन में लाना है, इसलिए हमने वापस से चेंजेस किए वो रीबेस कर दिया, ठीक है, तो ये भी हाँ कर ओके। सकते। हाँ और सही है ना ये ये मतलब, प्रोसेस? हाँ यही है, मतलब ये जरूरी नहीं तुम पुल करके लाओ, तुम चाहो तो खुद भी कर सकती हो, कभी कभार ऐसा होता है कि तुमने खुद ही मास्टर ब्रांच पे जाके चेंज कर दिया, तो वो ऐसे प्रॉब्लम नहीं होती कुछ, मतलब कुछ तुम्हारा छोटा सा बग आ गया मान लो, जो कि तुमने पता था कैसे सॉल्व करते हैं, तो तुमने जल्दी से आके मास्टर पर से जाके सॉल्व कर दिया और वो अपडेट होगी तुम्हारी, तुमने खुद ही कर दिया, तो ऐसा भी कभी कभी हो जाता है, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि तुम पुल करके ही वो चेंजेस लाओ हमेशा, ठीक है। नहीं, तो सेकंड वाला समझ नहीं आया, आपने जो बग वाला बताया वो नहीं समझ में आया। मतलब मान लो, समझ सपोज तुम फीचर इंप्लीमेंट कर रही थी, बट उसी लाइक तुम्हारे कोड में एक बग आ गया उसी टाइम में, और तुम्हें पता था कि उस बग को कैसे सॉल्व करते हैं, तो तुमने कर दिया, तुमने हम्म मास्टर ब्रांच पे गए और मतलब कोई और ब्रांच बनाई, मतलब भले ही बनाई हो, तो उसके कमिट तुम इसमें फाइनली चेंजेस तो लाओगे, तो इसमें फाइनली कमिट प्रेजेंट होंगे ही ना, हम्म। तो वो चेंजेस आ गए तो तुमने वो खुद ही कर दिए, मतलब जरूरी नहीं है तुम पोल करके लाओ, मैं वही बता रहा हूँ कि तुम खुद भी चेंजेस कर सकते हो, ठीक है, जरूरी नहीं है वो मास्टर पोल ब्रांच कर। पे? हाँ तो बग मास्टर में आई थी U1 U2 में? नहीं मतलब बग मास्टर ब्रांच के हिसाब से ही कोड चलता है, मतलब जो भी डिफॉल्ट ब्रांच होती है, जो अदर प्रोजेक्ट वो इसी ब्रांच के साथ चलते हैं, तो वो बग आते रहते हैं, ठीक है। ओके। हाँ तो ये हो गया, और अब तो मैं इसका एक और जल्दी से चलो ठीक है रहने दो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर आप थोड़ा रिबेस का तरीका बताएंगे, मतलब वो रिबेस का ये समझ नहीं आया। कौन सा तरीका, ये 3 स्टेप? हाँ। चलो ठीक है जल्दी देख लेते हैं, मतलब क्या होता है, ऐसा होता है 2 ब्रांचेस होती है, ठीक है, एक जिसको तुम्हें रिवेस करना है, मतलब जिसका बेस चेंज करना है, ठीक है, जनरली वो फीचर ब्रांच होती है, जो कि हमारा ये था, ठीक है, इसको मतलब हमें हिस्ट्री फाइनली ऐसी बनानी थी, ठीक है, क्योंकि काफी क्लियर है, ये क्या है इसमें, पुरानी हिस्ट्री अपडेट एक साथ आ गई, फिर हमारे फेजेस आ गए, तो ये काफी क्लीन हिस्ट्री है, ठीक है, मतलब कुछ भी इसमें गड़बड़ नहीं है, आगे पीछे नहीं है, ऑर्डर बिल्कुल सेम है, ठीक है, तो हमें कुछ ऐसा बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फीचर का बेस चेंज करेंगे, ठीक है, ये भी एक प्रोसेस है, 2 प्रोसेस है, इसमें 2 बार रीबेस यूज करना पड़ता है, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फीचर का बेस चेंज कर देंगे, ठीक है, तो क्या होता है, सबसे पहले 2 ब्रांच को जब रिबेस करते हैं, सबसे पहले हमें देखते हैं कॉमन बेस क्या है, ठीक है, कॉमन बेस क्या है दोनों में, M2 है, ठीक है, फिर क्या करते हैं, 2 ब्रांच ली थी ना हमने, उनमें से एक होती है ये ब्रांच, ब्रांच टू बी रिबेस, मतलब जिसको रिबेस करना है, ठीक है, तो इस केस में हम किसको रिबेस कर रहे हैं, फीचर को रिबेस कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम उस पर चेकआउट कर जाएंगे, हम समझ लो सिर्फ फीचर ब्रांच पर आ गए, देखो लिखा है जेट चेकआउट ब्रांच टू बी रिबेस, हम सबसे पहले उस ब्रांच पर आएंगे जिसको हमें रिबेस करना है, मतलब जिसका बेस चेंज करना है, उसके बाद हम ये कमांड लिखेंगे जिट रीबेस, फिर उस ब्रांच का नाम जिसके हिसाब से हमें रीबेस करना है, मतलब जिसमें बेस कमिट प्रेजेंट है हमारा, ठीक है, समझ रहे हो, मतलब जिसके बेस के हिसाब से मुझे फीचर को अपडेट करना है, हमें मास्टर के बेस के हिसाब से फीचर को अपडेट कर दिया, मास्टर का बेस U2 कर दिया और फीचर अपडेट हो गई, मतलब U2 हो गया, अब फीचर का बेस U2 हो गया, ठीक है, M2 से U2, तो ये 3 प्रोसेस होते हैं सिंपली, कॉमन बेस से स्टार्ट करता है, उसके बाद क्या करता है, जो बेस ब्रांच होगी ना, जिसके हिसाब से तुम चेंज कर रहे हो, इस केस में क्या है, मास्टर के हिसाब से तुम चेंज कर रहे थे, तो सबसे पहले वो मास्टर के कमिट को रख देगा आगे, तो क्या किया उसने, M1 M2 पहले से ही थे, यहाँ से प्रोसेस चालू होगा M2 के बाद से, क्योंकि कॉमन बेस ये था, तो कॉमन बेस के बाद से प्रोसेस चालू होगा, उसमें सबसे पहले वो उस ब्रांच के कमिट्स रखेगा जो कि बेस ब्रांच होगी, बेस ब्रांच कौन सी है, इस केस में मास्टर है, तो उसने सबसे पहले U1 U2 को रख दिया, ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, अगर आगे अब आगे कोई कमिट्स नहीं है तो वहीं रुक जाएगा,
उसके बाद ये जाएगा फीचर ब्रांच पर, मतलब जिसको तुम रिवेस कर रहे थे, मतलब जिसका तुमने बेस चेंज किया है, जो कि थी इस केस में फीचर। तो फीचर ब्रांच पर जाएगा और फिर उसके सारे कमिट रख देगा। तो फीचर ब्रांच में यहाँ पर गया और उसके सारे कमिट रख दिए। तो हिस्ट्री तुम्हारी अपडेट कर रहा है बेसिकली, ये समझ रहे हो? हिस्ट्री तुम्हारी ये मास्टर ब्रांच है, मास्टर ब्रांच यहाँ पर रुक गई, ये यहाँ से फिर एक न्यू ब्रांच आ गई इधर, ये थोड़ा ऐसे कर लो ज़्यादा विजिबल रहेगा। ये ब्रांच नहीं है, मतलब ये लाइन समझ लो गलत है, बस यहाँ से थोड़ा, मतलब ये ब्रांच फीचर यहाँ पर आ गई, यहाँ से उठा के फीचर हमने यहाँ पर रख दी, इसका बेस चेंज कर दिया M2 से U2। तो ये पूरा इंटरनल प्रोसेस है, ये 3 हो रहे हैं, समझ रहे हो? ठीक है। मतलब ये सर हम ऑर्डर किसी स्ट्रिक्टली भी फॉलो ब्रांच होता है ना? ये हाँ ऑर्डर मतलब फॉलो होता है, राइट? ये ऑर्डर इस पर डिपेंड करेगा, जो मैंने ये 3 प्रोसेस बताए ना, ऑर्डर इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, जो भी ऑर्डर मतलब रहेगा हम कॉमन किसी बेस के बाद, वो इस पर डिपेंड करेगा, जो मैंने 3 स्टेप बताए। हेलो, हाँ बोलो। मतलब सर हम किसी भी ब्रांच का बेस चेंज कर सकते हैं? हाँ हाँ, किसी भी ब्रांच का बेस चेंज कर सकते हो। अब तुम चलो, मैं ये भी करके दिखाई देता हूँ जल्दी से। काफ़ी टाइम हो जाएगा, चल करके दिखा देता हूँ मैं जल्दी से। M1 M2 U1 U2 F1 F2 F3। ठीक है, ओरिजिनली हमारी हिस्ट्री ऐसी थी। ठीक है, अब सपोज करो मैं डायरेक्टली यहीं पर ही, मतलब पहले फीचर को रिवेस नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्ट मास्टर को रिवेस कर देता हूँ। समझ रहे हो? मतलब जो डाइवर्जिंग पॉइंट था ना इन दोनों ब्रांचेस का कॉमन बेस से, उसके हिसाब से मैं मास्टर का बेस चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं मास्टर का बेस चेंज करूंगा तो ये मैंने बताया था, देखो मैं जिसका बेस चेंज कर रहा हूँ मतलब दूसरी ब्रांच के चेंजेस उस ब्रांच में आ जाएंगे। तो अगर मैं मास्टर का ब्रांच चेंज कर रहा हूँ तो इस ब्रांच के चेंजेस अगर इसके हिसाब से कर रहा हूँ तो इस ब्रांच के चेंजेस इसमें आ जाएंगे। तो ये एक ही प्रोसेस में हो जाएगा, मतलब एक ही बार मुझे यहाँ पर गेट रीबेस लिखना पड़ेगा। एक ही बार में मुझे यहाँ पर गेट रीबेस लिखूंगा। मैं पहले से सपोज करो मास्टर ब्रांच पर हूँ, मैं यहाँ पर लिखूंगा गेट रीबेस और फिर लिखूंगा क्या लिखते हैं, गेट रीबेस ब्रांच बेस ब्रांच नेम। तो बेस ब्रांच मेरा कौन सा है इस बार? ये F1 F2 F3, मतलब बेस मैं सीधे अब यहीं पर ही ले रहा हूँ। ठीक है, वो मैंने पहले वाला प्रोसेस नहीं किया, मैं सीधे फीचर ब्रांच को रिबेस कर, मतलब मास्टर को रिबेस कर रहा हूँ फीचर के हिसाब से। तो मेरी बेस ब्रांच कौन सी होगी? फीचर ब्रांच। तो ठीक है, मैंने यहाँ पर फीचर डायरेक्टली लिख दिया। तो क्या होगा, उन 3 स्टेप पर जाओ। सबसे पहले क्या करेगा, वो कॉमन बेस ढूंढेगा। कॉमन बेस क्या है मेरा? M2। ये मेरा कॉमन बेस है, अभी तुम देख रहे हो दोनों में। ठीक है, इसके बाद क्या करेगा, पुट कमिट्स ऑफ द मेन बेस ब्रांच। बेस ब्रांच इस केस में कौन सी बेस ब्रांच है? जिसमें बेस प्रेजेंट है, मतलब जिसके हिसाब से तुम रिबेस कर रहे हो, मतलब वो नहीं जिसका बेस चेंज कर रहे हो, वो तो मास्टर है। किसके हिसाब से कर रहे हो? फीचर के हिसाब से कर रहे हो। तो सबसे पहले क्या करेगा, वो बेस ब्रांच के कमिट्स को रखेगा आगे। पुट कमिट्स ऑफ द बेस ब्रांच। तो बेस ब्रांच इस केस में कौन सी है? फीचर है। तो अब हिस्ट्री कैसी होने लगेगी, पहले तो ये कॉमन बेस पर आएगा M1 M2, कॉमन बेस आ गया मेरा। इसके बाद प्रोसेस चालू होगा, बेस ब्रांच के कमिट्स को रखना स्टार्ट करेगा। बेस ब्रांच के कमिट्स रख के ब्रांच M1, कौन डिसाइड करता है? वो तुम डिसाइड करते हो, पर जो यहाँ लिखते हो ना वो बेस हाँ, ब्रांच होती है। ओके सर। वो मैंने यहाँ लिखा। ठीक है, तो बेस ब्रांच फीचर है। F1 आया, F2 आया, F3 आया। अब आगे कोई बेस ब्रांच पे कोई कमिट नहीं है, रुक जाएगा। उसके बाद का प्रोसेस क्या है? उसके बाद का प्रोसेस क्या है? पोर्ट कमिट्स ऑफ फीचर, मतलब फीचर नहीं, मतलब यहाँ पर वो आएगा स्पेसिफिकली कि जिसका बेस चेंज कर रहे हो तुम। ठीक है, वो मैंने पहले ही बताया था, याद रखना चीज, वो गलत लिख गया वहाँ पर। जिसका बेस चेंज कर रहे हो, तो इसमें भी हम किसका बेस चेंज कर रहे हैं? मास्टर का, सीधे मास्टर का बेस चेंज कर रहे हैं। ठीक है, हम तो इसका बेस चेंज कर रहे हैं। तो अब इसके कमिट्स आएंगे, तो इसके कमिट्स अब कॉमन बेस के बाद पहले देखा M1 M2 कॉमन बेस था, उसके बाद हमने फीचर के चेंजेस रखे, ये F1 F2 F3 आ गए। फिर उसके बाद मेरे दोबारा से ये क्या कहते हैं, जिसका बेस चेंज कर रहा है उस पर आएगा, उस पर देखेगा कॉमन बेस के आगे कोई कमिट्स है या नहीं। यहाँ पर 2 कमिट्स हैं, तो वो यहाँ पर U1 U2 को रख देगा। तो इस केस में क्या हुआ, काम सेम ही हुआ, मतलब सेम ही प्रोसेस हुआ M1, बस थोड़ा ऑर्डर बदल गया। Sir, now new branch form now, sir. This main branch or feature branch? The new branch This we is called as a main branch or future branch? this is main branch. This is not feature branch. Feature branch is still my feature branch is still here. What I did in this time, like I changed the base of the master branch, not first, like in the last process what I was doing, I was first doing changing the base of the feature branch, and then I'm changing the base of the master branch. So the history was clean, there were M1 M2 U1 U2 and then F1 F2 F3, मतलब
पहले जो ओरिजिनल जो रेपो थी कंडीशन वो, फिर जो अपडेट हो गई मेरी अपस्ट्रीम वो, क्योंकि वो पहले चेंजेस किए गए थे, क्योंकि वो पहले अपडेट हो गई थी मेरे फीचर से मर्ज होने से पहले, तो पहले मैं उन चेंजेस को रखना चाहूंगा और फिर मैं अपने ऊपर मतलब जो मैंने चेंजेस किए फिर उसके बाद, ठीक है। तो हिस्ट्री काफी क्लीन रही। अब क्या हुआ, ये जो मैंने डायरेक्ट रिबेस करा, इसमें क्या हो रहा है, तुम्हारी जो फीचर ब्रांच है वो M2 के पास ही है, ठीक है। इस बार मैंने मास्टर को रिबेस कर दिया तो M1 M2 रहा, पर यहाँ पर क्या हुआ, इस बार F1 F2 F3 पहले आ गए, क्योंकि मैं मास्टर को रिबेस कर रहा था फीचर के हिसाब से, तो फीचर के कमिट्स पहले आएंगे और जो मास्टर पे जो अपडेट हुए थे वो बाद में आएंगे। काम हो गया, मतलब हमारे चेंजेस आ गए, फीचर जो हमें चाहिए था मास्टर, मतलब सॉरी U1 U2 आएगा यहाँ पर, जो भी चेंजेस थे वो हमारे आ गए, मतलब या कहते हैं फीचर ब्रांच के चेंजेस हमारे मास्टर ब्रांच में आ गए, बस थोड़ा ऑर्डर बदल गया है। इस बार हमारे चेंजेस पहले हैं अपडेट से, मतलब अपडेट से पहले अब हमारे चेंजेस आके जाएंगे। तो ये मतलब बेस्ट नहीं है, मतलब तुम चाहोगे कि जो पहले अपडेट हुआ है पहले उसको रखा जाए, फिर बाद में जो हमने बाद में किया है वो बाद में आए, ठीक है। इससे हिस्ट्री मॉडिफाई होगी, मतलब जैसा चल रहा है हम वैसे ही रखना चाहेंगे, उसको उल्टा सीधा नहीं करना चाहेंगे, तो इसलिए हम क्या करते हैं, क्लीन करने के लिए 2 बार रीबेस यूज करते हैं, समझ रहे हो। गुड प्रैक्टिस जो मैंने पहले बताई थी वो रिजल्ट है। के लिए हमें बस एक ही बार रीबेस करना होगा। हाँ बट पर ये गुड प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए यूज मत करना इसे, डायरेक्ट तुम 2 बार रिबेस करना, ठीक है। तो मतलब हमारा सिस्टम सर एक मास्टर बार आप ब्रांच से समझा स्टार्ट देंगे कि होगा। इधर एक बार रीबेस हो रहा है और एक एक पहले 2 करके बार रीबेस हो रहा था, वो बात एक बार फिर से समझा देंगे आप। अरे, चलो ठीक है। सर मुझे बस एक छोटा डाउट था कि U1 U2 जो चेंजेस हुए थे वो मेन ब्रांच पे हुए थे कि वो हाँ कोई, मास्टर पर मेन पर ही हुए थे, मेन पर ही। तो बट मेन का बेस कैसे चेंज कर सकते हैं हम फीचर से, मतलब इसमें तो मतलब बेस मतलब कॉमन बेस जो था, जो 2 ब्रांच जो इंक्लूड कर रहे हैं ना ऑपरेशन में, रीबेस में हम 2 ब्रांच इंक्लूड करते हैं, तो उस कॉमन बेस के जो पहले कॉमन बेस था ना उसको अपडेट करते हैं हम एक ब्रांच का। पिछली बार हमने फीचर का पहले अपडेट किया था कॉमन बेस, इधर देखो इस बार हम क्या कर रहे हैं, देखो कॉमन बेस हमने मास्टर का सीधे अपडेट कर दिया, M2 से काम कहाँ पहुंच गए, सीधे U2 पर पहुंच गए, अच्छा, मतलब बेस चेंज हो गया। लास्ट ओके प्रोसेस में ओके क्या हो रहा ऐसे, था, ओके ओके समझ में आया, हाँ कॉमन बेस से देखते हैं, ठीक है। हाँ सर समझ। हाँ तो लास्ट वो क्या है, 2 बार कैसे हुआ, हम क्या कर रहे थे पिछली बार, हम मास्टर को रिबेस करने के बजाय फीचर को रिबेस कर रहे थे, मतलब फीचर का जो कॉमन बेस था उसको चेंज कर रहे थे। पहले फीचर का कॉमन बेस का था M2, हमने रिबेस किया, फीचर का बेस होगा U2, पर इससे क्या हुआ, हमारी जो फीचर में थे ना वो मास्टर के चेंजेस आ गए, बट अभी भी जो हमारा मेन मोटिव था कि मास्टर में हमें फीचर के चेंजेस लाने वो नहीं हुए थे। वो किससे होंगे, जब हम मास्टर को फीचर के हिसाब से रिबेस करेंगे, ठीक है। तो वो हमने किया और फिर जो जो फीचर के चेंजेस थे वो मास्टर में आ गए। तो ये 2 स्टेप प्रोसेस है, बट ये लाइक वैलिड है, जो पहले अपडेट हुए थे वो पहले हो रहे हैं, जो तुमने फिर बाद में चेंजेस किए वो बाद में आ रहे हैं, ठीक है। यस सर। और इसमें क्या किया हमने, डायरेक्ट रिबेस कर दिया, पर इससे ऑर्डर चेंज हो गया, हमारे पहले अपडेट आ गए और ये बाद में आए, ठीक है। सर यस और सर। रीबेस हम कौन से भी ब्रांच पे रह के किसी भी ब्रांच को कर सकते क्या, हाँ हाँ मतलब। किसी मतलब, पर हिस्ट्री मैच करनी चाहिए, मतलब उस उनका कोई कॉमन बेस जरूर होना चाहिए, अगर कॉमन बेस नहीं होगा तो वो अनमैच हिस्ट्री बता देगा एरर, सर और मतलब मर्ज। मतलब हम मतलब अगर ऐसा याद किया कि अगर गेट रीबेस के बाद जो ब्रांच का नाम निकले तो उसके हाँ कमेंट पे आ जाएंगे बस। हाँ मतलब मैं समझा नहीं तुम क्या पूछ रहे हो। मतलब अभी जो अपना कमांड है गेट रीबेस और ब्रांच नेम, तो हाँ फिर ब्रांच नेम के वहां पर जो अपन देख रहे तो उसके कमिट पहले आएंगे हाँ जो। हाँ हाँ इसके कमेंट पहले आएंगे, हाँ बिल्कुल सही, हाँ, बिल्कुल सही, इसके सर हम पेमेंट पहले बिना आएंगे। बिना सर हम बिना ओनर के परमिशन के F1 F2 F3 को कैसे इसमें मेन में इंक्लूड नहीं कर, ये सब तुम्हारी ब्रांच है, अच्छा ये ये हमारे सब। टीसी पे हो रहा है। हाँ हाँ ये ओके। तुम्हारी मास्टर है, ये तुम्हारी फीचर है, ठीक है। हम्म। और जल्दी जल्दी बताओ। अबे तो मेन अब मोटिव, रिबेसिंग के डाउट्स ना बाद में ले लेंगे, थोड़ा थोड़ा हाँ चल कंटेंट ठीक है। कवर कर ले आगे का। तो अब मुझे वो बताना है क्या, तो चलो ये ठीक है, इसको देखते हैं पहले जल्दी से, कहाँ था। हाँ इसमें किसी को कुछ डाउट्स है, रिमोट और फैचर पुल में। रिमोट फैच पुल एंड में ले लेंगे, पहले अभी थर्ड डे कंटेंट कर लेते हैं। चल ठीक है, फिर मैं स्टॉप कर देता हूँ। सुप्रिया, Where yesterday while doing task 1 and task 2 we getting the with
The fast people has declined to do changes in. We are getting that like. Decline to do what? Decline to push our files. That task. We'll take Acha, this out on Discord, Nagula. yeah. You can just come share your screen on Discord later, okay? Am I audible? Yes, Supriya, you're audible. Is it visible? His screen isn't visible, Supriya. Yes. So what is GitHub Pages? GitHub Pages are It's not public visible. web pages for users. Supriya, your screen is not visible. Like it's showing you're starting to share content, but load नहीं हो रहा किसी का भी. Uh, Let me share the PPT. हाँ. बीच Stop पर sharing. है. Share it. अच्छा, कुछ लोगों को दिख रहा है visible. भैया कुछ को नहीं दिख अच्छा ठीक है. Like मुझे तो नहीं दिख रहा था. मुझे भी नहीं दिखा. हाँ तो दिया नो ही दिख रहे you हैं can वैसे. share. All right, हाँ. So am I audible now? Yes, ma'am. Okay. So let's get started with GitHub Pages. So what is GitHub Pages? It is a simple service to publish a website directly on GitHub from a Git repository. Like you add some files and folders to a repository, and the GitHub Pages turns into a website. Or you can use any HTML directly if you want to host your website freely. So GitHub Pages provides you the service to host your website for free. But there's some drawback of the GitHub Pages that it hosts only the static websites. So you just need to edit, push, and your changes are live. So Supriya, tell me let's when to get change the started. slide. Okay. Okay, Midha, next. So I'm assuming that you all have your repository for hosting website. If you haven't already, go ahead and initialize your project and with your repository and upload your files. So I have my own, that's why I am started from here. I'm telling you the steps for the hosting your website and then we go live. First, you need to go to the setting. Next, Medha. After that, you have to you see this you see this the GitHub Pages and the link that check it out here. Click on that. It will show. It will go up to the GitHub Pages now. Now here you can see that the branch, master, and known. To enable the GitHub Pages service to your repository, we need to check the master here and just hit save. After that, you can see the next. So whenever just you hit save, your site is ready to be published at the domain that this is highlighting by the GitHub. And now you can go from this website to see your website that is hosted on the net. So let's go live. So will you present or let me do the job? Yeah, I'm presenting. Okay. Is it visible? No, ma'am. No, ma'am.
Yes, Now it's visible. Now it Wait is. a Now minute. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Now Yes, it's ma'am. visible. Yes, ma'am. Now it's visible. Okay. So I'm assuming that you already have your websites. No, sorry. I'm assuming that you all have your repository for hosting the websites. Now we can go to the setting. Scroll down. Here you find the GitHub pages. Just take it out here. You will see these GitHub pages. Now to enable the service, we have to change the branch from node to main. Now I hit save. So you see that my site is ready and it is published to this. When I hit this, It might take some time, like usually up to a minute or two. So, why is it showing self-put found? So here, so it is our website that we hosted on the GitHub pages. So from this, you will deploy your first website from the GitHub pages. You can check the link. I am just give you. So this is something that you will require when you are attending the workshops for web deving, which is why we've told you how to host your own pages. So whenever you make like HTML CSS का कुछ भी आप host कर सकते हो बहुत easily GitHub के साथ इसीलिए ठीक है. So this is something everybody should know. Okay, so any doubt? We'll first have So to let's make. proceed to Sorry. yes. I'm saying first we'll have to make our own repository and then we can make our publish our website there. Yes. You have to upload your files, like you can just upload your simple HTML file and it will be ready to publish. And ma'am, how can we make our own repository? Uh, Whenever you go to your GitHub, there's a option for making a new repositories. Just click on new and write your repository name and just started it with hit button. And after that, you whatever the day one and day two have told you that you have to fork, clone, or just you have to push your local files to the GitHub, To our own and then it will repository. directly upload it. Yes. Okay, ma'am. So, ma'am, the clone version of our repository that we'll be saving in our computer, that will be the local repository. No, you don't have to clone your repository. Just start here with your name, like this. I have created this repository. Now you have just, if you have your code on the local system, you just follow this 3 step and just push your code to the repository. It will directly upload it to the GitHub. Okay. So we don't have to create a pull request. No, no, no. This is your this is your pages. So just you have to push your code from the local system to this your repository. Okay, ma'am. So clear. Now we proceed to the next
So from the day 1, day 2, you have committed many changes to the files, and many times you have faced a, a new window open in when you write just git commit without -m or message, because you can't write a message without you can't commit without a message. You have to commit with some message. So whenever you type git commit without m, then there is another window open. So that's a window Vim editor. So what is a Vim editor? Vim is just a text editor. It allows you to write and edit your text. Basically, it is for writing your commit message. So let's go live. So here, Can you please increase the font size for Git Bash? yes. Now, okay. Yes, ma'am. So this is my local repository. I have already the repository that I have deployed. It is my local system. So I just so now I am just committing some change, like I am making a new file. So you can see here that I have added a new file to txt here. So I have to commit my changes to my remote repository. Therefore, I did git commit. But see, I am writing here without -m, because without -m, because if I am write just by putting a message, it will directly commit your message. But if I write just git commit, then a new window will open. So all of you can see this. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this editor is a Vim editor. Now it is in normal mode. There is two mode in the Vim editor: normal mode and insert mode. In insert mode, we have to write our commit message. So to go to the insert, we have to type I. Now you can see here at the left corner bottom is it like here it is written that insert. Now you can write your commit message. Now so whenever I hit enter, it just expanding the message up to then, because it is not in normal mode, it is in insert mode. So escape from the normal insert mode to escape normal mode, we have to hit our ESC button. So I am hitting just ESC. Now to quit this Vim editor, I have to write :WQ. So I am writing this because WQ means that you are committing your file with writing and saving and then quit. So if I write just Q, then it hits and it just ignore my commit message and just quit. If I write Q not, then it will forcefully it will forcefully close my this window and not will open like this, like I have enter. So so here you can see the message that aborting commit due to empty commit message, because I have written there :Q not. Now I'm going again I press enter. Now this is in insert mode. Again I'm committing my message. So to save and quit this, I have to just again press escape :WQ. Now you can see that this is my commit message already committed.
So all of you understand this? Yeah. So why did we Command type- save and return back. Repeat, please. Can you repeat the command to save and come back? Okay, Okay, okay. This PPT is visible to you? Yes, ma'am. Now it's clear. Yes, sir. So just I have said that Vim editor consists of two modes. One is normal mode and another is insert mode. So from going normal mode to insert mode, we have to type I. Okay. So typing I means that you are switching from normal mode to the insert mode, which allows you to edit and writing your commit message. After that, you will write your commit message. To come back again from the insert mode to normal mode, you have to hit ESC. Without that, you cannot come up from that. And if you want to save your commit, you have and save and exit. So you have to write :WQ, and if you write only Q, then it will basically quit without saving. And if you write Q note, it is for force quit, that you are just to close that window, nothing writing and nothing saving. Hope you get it. Ma'am, this is the second way to add a message to our commit, right? Yes. If we put :Q, then will it commit the message or not? It will just quit the window. No, it's just quit without writing here. Okay, means no message and no commit. Yes. What is the difference between quit without writing and force quit? दोनों में कमेंट तो वैसे भी नहीं जा रहा है. आप राइट कर रहे हो लेकिन उसको आप सेव नहीं कर रहे हो क्यू में. एंड क्यू नोट जो है वो आप फोर्स क्विट कर रहे हो कि आपको जाना ही नहीं है विंडो में, आपको निकलना ही है, मतलब आप कोई रिटर्न नहीं कर रहे हो. और क्यू मीन्स आपने कुछ राइट तो किया है बट आप उसको सेव नहीं करना चाहते हो और बिना सेव करके उसे निकलना चाहते हो. सो क्यू इज फॉर दैट. ओके. No doubts. I have a doubt. This Vim editor works on Mac. Yes. Can you repeat? And this Vim editor works on Mac. Raghav, I think Vim editor is the default editor for Git in Windows, and it will like. No, but even in Mac, when you are committing without writing the commit message, it will open a different window and force you to write that message for the commit. So that itself is the Vim window, basically. Does work on Mac. And same for Mac. Yeah. What? Are these all commands in PPT same for Mac also? Yeah. Okay. Yes. Yes, same command will work on Mac too. So I think we can move on to the next topic for today. All right. Okay. So, hi everyone. I'm Dia. We'll move on to the next topic. तो अभी तक काफी basics तुम लोग cover कर चुके हो. तो we learn some new stuff now. ठीक है? रुको पहले तो let me share my screen. Okay, I hope it's visible. Right. तो हाँ, we'll move on to history modification. तो तुम सबको पता ही है कि कितनी important होती है Git की history because so many different people are working in it. तो you need to know who's made what commit and मतलब अगर किसी ने bug introduce कर दिया किसी feature में तो वो पता करने के लिए you need to know कि ये वाला bug यहाँ से आया था. तो Git की history काफी rich होती है, काफी important भी होती है, तो it's very important to maintain it well.
which is why sometimes you need to clean that history or you need to sometimes reorder the history. मतलब बस basically आप कैसे उसे clear बना सकते हो ताकि कोई भी जो देखे, जो भी काम कर रहा हो history पे, मतलब उस रेपो में वो देख पाए कि हाँ यहाँ पे ये चेंजेस हुए थे. लाइक क्लियर कैसे करते हैं हिस्ट्री, कैसे अच्छे बनाते हैं. तो पहले वील टॉक अबाउट रीराइटिंग द हिस्ट्री एंड नॉट टू कॉम्प्लिकेट स्टफ फॉर यू. मैं बहुत ही बेसिक बताऊंगी बिकॉज ये थोड़े एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स हैं एंड यू डोंट नीड टू नो इट रियली वेल. तो आई जस्ट टेल यू द बेसिक्स दैट यू नीड टू नो फॉर इट. ठीक है. तो फॉर रीराइटिंग हिस्ट्री आई एम गोना टेल यू अबाउट द लास्ट कमिट, कैसे अमेंड करते हैं उसे, विच इज कमिट हाइफन हाइफन अमेंड के साथ. ठीक है. आई विल वेट, किसी ने पूछा ना अभी अबाउट डिलीटिंग अ कमिट. आई कैन टेल यू दैट ऑल्सो बट बहुत ही ब्रीफ में. We'll start with rewriting history. तो basically the git commit amend command lets you modify the most recent commit. ठीक है. तुमने कुछ करा and तुम्हें लगा कि oh shit ये गलत हो गया, तो अब मैं इसे कैसे change करूँ. तो you can go back and amend that one particular commit. ठीक है. तो I'll just read this out, but mostly तुम लोग को डेमो में दिखा दूंगी. ठीक है. It does not just alter but replaces. ठीक है. तो commit एक ID होती है, right? तुम लोग जब देखोगे मैं डेमो जो करूंगी तो वो ID रिप्लेस हो जाती है. तो दैट प्रीवियस कमिट जो आप अमेंड कर रहे हो या एडिट कर रहे हो वो हट जाता है हिस्ट्री से, उसके बजाय एक न्यू कमिट आ जाता है. ठीक है. विद द एडिटेड और अमेंडेड वर्जन ऑफ इट. एंड ये सब मैं जब कर रही हूँ तभी दिखा दूंगी तुम लोग को. तो लेट्स स्टार्ट. ठीक है. डेस्कटॉप पे तो मैं हुई, मैंने बना दी एक टेस्ट रेपो. यहाँ बन गई मेरी टेस्ट. ठीक है. VS Code में खोल लेती हूँ because I'll work on a file. So give it some time. One more thing that I'll show you, if you worked on VS Code, you might know, but if you haven't, you might not know. तो यहाँ पे ना एक ऑप्शन होता है सोर्स कंट्रोल का, एकदम लेफ्ट साइड में तुम लोग को दिख रहा होगा. तो वहां से यू कैन डायरेक्टली वर्क ऑन योर रिपोजिटरीज या जो भी आप काम कर रहे हो. तो हियर आई ओपन माय टेस्ट रेपो. यहाँ मैंने सोर्स कंट्रोल खोला तो द रिपोजिटरी इज नॉट इनिशियलाइज्ड. ठीक है. यहाँ लिखा है इनिशियलाइज्ड रिपोजिटरी. तो यहाँ मैं लिख देती हूँ गिट इनिट. तुम लोग जान ही गए होगे बहुत. इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपोजिटरी. अरे यार मैंने डेस्कटॉप को ही करती. रुको रुको रुको. See, this is why you should always cd into your directories. चलो अब मैंने कर दिया इसे इनिशियलाइज. ठीक है. तो मेरा टेस्ट पे ये मास्टर आ गया. आई होप यू गाइस कैन सी दिस. राइट. तो मेरी टेस्ट बन चुकी है एक रेपो. सो नाउ व्हेन आई क्लिक ऑन इट यू कैन सी दैट देयर इज इनिशियलाइज्ड. ये हो चुके हैं. लाइक देयर इज समथिंग दैट यू कैन डू हियर इटसेल्फ. तो we'll move on and we'll create a file here. One more thing that you can do with VS Code is open git bash in this itself. तो मैंने मान लो बना दी यहाँ पे dia.txt. तो I can open my git bash यहीं से. ठीक है. तो I don't need to open it in a different window. यहाँ टर्मिनल का ऑप्शन होता है. तो यहाँ जाके मैंने git bash कर दिया. ठीक है. तो it opens here directly. Again I'll just cd test. All right. If I do ls मेरी यहाँ dia.txt है. तो लेट्स स्टार्ट. यहाँ मैंने लिख दिया पहली चीज हेलो वर्ल्ड. चलो या चलो एक टाइपो कर देते हैं, हेलो वर्ल्ड लिख दिया. ठीक है. एंड आई एडेड दिस. आई कमिटेड इट. फर्स्ट कमिट. ठीक है. तो since I'm working locally, let's not push it for now and let's see कि what are the two options we can have when we are fixing a typo. मतलब something very simple. ठीक है. तो when you are working on a big repository जहाँ पे आप बहुत लोगों के साथ काम कर रहे हो and you've pushed your changes, तो it's not recommended कि आप commit amend करो because वही है कि लोगों को पता नहीं चलेगा कि आपने commit करा फिर आपने fix भी किया typo. It again makes it harder to understand. But since I am working on my own, I can directly amend this. ठीक है. तो I can just go ahead and इसको मैं replace कर सकती हूँ with the fixed version. If you guys want, I can show you. ठीक है. रुको मैं इसी को करके दिखा देती हूँ. जैसे मैंने करा, रुको पहले git log में देख लो क्या है. यहाँ पे हमारा एक commit है which is first. Now let's say I fix this. I saved it and मैंने कर दिया git add dot. इसको मैंने commit किया with
first amend. All right. अब मैं git log देखूं, I have 2 commits. This is good practice when you're working on a big repo with a lot of people. But again, like I said, I don't want to do this. I want this to be just one commit. ठीक है, मैं नहीं चाहती कि ये दो हो. तो I'll show you how to amend this one. But उसके लिए we'll have to go back to this. तो I'm just doing this. ये तुम लोग आज पढ़ोगे reset क्या होता है. हाँ, again I'm back to my typo वाला. अब मैं git log देखूं. रुको, यहाँ नहीं, yikes. अगर मैं अपना git log देखूं तो यहाँ पे मेरा सिर्फ फर्स्ट कमिट है, वो मैंने हटा दिया पुराना वाला. ठीक है, अब मैं इस कमिट को कैसे अमेंड कर सकती हूँ. तो जैसे तुम लोगों ने सीखा गेट कमिट अमेंड, तो वो कब अप्लाई होता है. आप पहले अपना जो टाइपो है वो ठीक कर लो. ठीक है, आप उसे सेव कर दो, फिर आप उसे ऐड करो. ऑलराइट, एंड देन इंस्टेड ऑफ टाइपिंग git commit -m जो आप करते हो, instead of doing this you go ahead and write amend. Alright, अब मेरा खुला Vim editor that you guys just learned about. तो I amended that commit. ये टाइपो मेरी ठीक हो गई है, बट अब मुझे वो कह रहा है कि भाई ये बताओ कि what do you want to keep your commit message as. तो I can choose to keep it this or I can keep something else again. First amended commit. Alright, तो I save this. Okay, ये गलत था. हाँ ठीक है, हाँ I save this. Now if I look at my git log, यहाँ मेरा आ गया first amended commit. So like you just saw, instead of complicating this whole thing with 2 different ones, I have a cleaner history. ठीक है, I know what I just did. So this is what commit amend does. Now let's say मुझे ये जो अभी यहाँ मैंने amend लिखा, उसके बाद मेरा Vim editor खुला to edit my message. I didn't want to do that. I wanted to directly amend the message as well. So what I can do is while I'm git commit amending, मैं यहाँ m करके flag add कर सकती हूँ and I can write amending message. Alright, now when I look at git log, यहाँ मेरा amending message आ गया. It's all the same. This is the same thing, right? Nothing's changing, but the commit, एक तो ये IDs have changed. ठीक है, if I go up, यहाँ देखो ये पहले 3F था. Then when I amended it, it became 1B. So the commit is replaced. ठीक है, the older commit is gone. But अभी मेरा आ गया यहाँ पे amending message भी with this M वाला flag. There's one more thing that was here, which was the no edit flag. No edit basically यहाँ क्या करता है कि आपने मान लो लिख दिया, यहाँ नहीं sorry, आपने मानो लिख दिया amend and no edit लिख दिया. So it won't edit the message at all. It won't force you to open the Vim editor also. It will just direct as it is first amended commit लिखा हुआ आ जाता. ठीक है. But since I wanted to change my message to clear things up, I've added the -m वाला flag. Usually you don't need to add -- no edit because again, it's easier if you edit your message as well ताकि आपको clear हो कि आपने क्या काम किया है. All right. So this was amending your last commit. Is there any specific doubt that you guys have इससे related? तो पूछ लो. मैम बोलो. मैम एक बार विम एडिटर कैसे खुलता है, एक बार उसके लिए कोई कमांड है? Vim editor ना तभी खुलता है when it wants you to do something that you already haven't done. Like they want me to add a commit message and I haven't done that, तो वो Vim editor खोल देगा. Right? So you can't really force it open unless you are rebasing, which I will get to अभी. ठीक है? But apart from that, वो खुद से ऐसे नहीं खुलता. Like अगर तुम चाहो तो मैं दिखा सकती हूँ. I'll write my name. एक बार शो कर दीजिए. मैंने सेव कर दिया. मैंने लिखा git add dot git commit added name. Alright. यहाँ पे मेरा नहीं खुला वो. ठीक है. बट अगर मान लो मैं ऐसे करती my name is दिया वाघमारे and I save it, फिर वही अगर मैं ऐसे git add dot करती और यहाँ पे मैं इसे amend कर देती instead of rewrite, मतलब again adding another commit,
तो इसमें मैंने मैसेज नहीं डाला था, आई जस्ट डिड डैश डैश अमेंड, आई डिडंट डू डैश डैश अमेंड डैश एम, राइट? तो दे आर लाइक मैसेज तो बताओ क्या चाहिए. तो अगेन इट ओपन दिस विम एडिटर which Supriya told you about, right? तो यहाँ पे insert के लिए I typed I, then I can change this. Added, चलो full name कर दिया मैंने, right? And then I can save this. And again, when I look at git log, I'll see amending message and I'll see added full name instead of added just name. Got it? Yes, ma'am. Right. तो commit amend is very simple. वही है कि last commit में if you have any problem and you're like, oops, अब इसका क्या करें? तो you can go back and fix it, right? Now moving on to, रुको इसको बंद कर देती हूँ. हाँ. हाँ, okay. Now git stash. ठीक है. This is something you use very less, but still, again, we wanted to teach you a nice advanced concept. तो काफी simply बताऊंगी क्या करते हैं. So, as you can read, it temporarily shelves or stashes changes that you've made, so you can go work on something else. And if you want to reapply those changes, कि अरे वो अच्छा ही था, रख ही लेते हैं, तो you can come back and reapply the stash. ठीक है? तो again, I'll show you this कि git stash save करके you can write the name of your stash, right? And because क्या होता है ना, why do you need to write the name of your stash is what if I have different things, बहुत सारी चीजें मैंने save कर रखी कि बाद में देखेंगे, तो what if I forget what the stash is about? तो you can do that using git stash list. You can view it, तो वहाँ पे when you save it with a name, वो list में नाम के साथ आएगा, which I will show you, ठीक है? And when you're reapplying your stashes, like आपको लगा कि हाँ ठीक है चलो, we can use that feature that I've saved or stashed, उसको मैं जाके वापस apply कर रही हूँ. So there are two ways. One is pop and one is apply, which again I'll tell you the difference when I'm doing a demo. And untracked वाला तो चलो रहने ही दो, you don't need to know that much about it. But वही है कि जो unstaged files होती है, जो आपने save ना कर रखी हो, add ना कर रखी हो, तो वो directly stash नहीं होती. You need to add this flag. But you don't need to worry about that, so I won't even demo that to you. शुरुआत का देख लेते हैं, ठीक है? So coming to this, do you guys like this whole VS Code के अंदर git bash thing, or do you want to come back to this? Like you can tell me. No, ma'am, this is fine. VS Code वाला. Cool, cool. Okay. So मैं इसे clear कर देती हूँ ताकि तुम लोग को, हाँ, okay. तो यहाँ मैंने ऐड कर दिया my name is दिया. चलो अब मैं ऐड करती हूँ कुछ और. Let's say I said my hobbies include reading and sleeping. Okay. And मैंने कर दिया इसे save. And then I was adding it. ठीक है, मैंने add कर दिया. But then commit करने से पहले I thought, wait, मैंने तो कुछ like include किया ही नहीं. Like I could have included that I'm a member of FOSS or something. So maybe I should leave this for now. Maybe I should do something else and then come back and use this. तो अभी के लिए I don't want this here. ठीक है. But then I don't want to completely delete it. मतलब मैं हटाना भी नहीं चाहती. What if I forget? ठीक है. तो this is usually, चलो मैं तो अभी sentences ही add कर रही हूँ, but this is helpful when you're working on say websites or bigger projects. तो आपने एक feature बना ली पूरी कि मैंने एक button ही add कर दिया and अभी मुझे ये button नहीं चाहिए, तो I can stash it and come back to it later. So again, I don't want this here right now. So what I can do is I can get stash and save it with the name. So I'm saving it with the name hobby. Alright. तो ये मेरी stash हो गई, यहाँ से घूम गई. Alright. तो अभी के लिए I can write something else कि I am a member of FOSS, right? मैंने save कर दिया, इसको add कर लिया. But then I'm like, I'm not so sure about this also. इसको भी stash कर देते हैं, दूसरी वाली देखते हैं कि hobby better लगेगी या नहीं. तो चलो फिर मैंने इसे भी stash कर दिया कि let's just leave it for now. तो मैंने रख दिया इसको FOSS. तो अब ये दोनों चली गई. Now I'm like, मैंने दो बनाई थी, अब मुझे यह पता कि अगर मैं git stash pop करूंगी, which is basically popping the last stash out of the stashes की list, तो मुझे क्या पता कौन सी आएगी. तो I want to use a particular, like I want to reapply one particular stash, so I can view it from git stash list, like I told you guys, है ना? तो यहाँ पे देखो clearly you get a very nice one line की list कि पहले मैंने बनाई थी hobby, अब मैंने बनाई है FOSS. All right. So what I can do is I can apply this again here. I can bring it back.
तो उसके लिए करते हैं get stash either pop or apply. Now the difference is apply करते वक्त it's just applying here, but it won't get deleted from your stash list. What if you need to apply it somewhere else? Let's say मेरे पास एक बटन था मेरी वेबसाइट में जो मैंने होम पेज में स्टैश करके रखा है, बट मैं उसे पूरा पॉप आउट नहीं करना चाहती. आई वांट टू सेव दैट स्टैश. व्हाट इफ आई नीड इट फॉर अनदर पेज? तो मान लो मैंने दूसरा पेज बनाया, तो उसके लिए भी आई कैन जस्ट वेट फॉर नाउ एंड अप्लाई इट. पॉप में क्या होता है ना, वो अप्लाई हो जाता है एंड देन इट रिमूव्स दिस, सो यू वोंट हैव अ हिस्ट्री ऑफ दैट स्टैश. तो फॉर योर कन्वीनियंस आई विल शो गेट स्टैश पॉप एंड आई विल शो यू कौन सी वाली, हॉबी वाली दिखा देती हूँ. तो मैं इसे कॉपी करके पेस्ट कर दूँ. आई एम मेंशनिंग विद स्टैश एंड यहाँ पे आ गया. ऑलराइट, but now I'm like चलो git stash list अगर मैं देखूँ तो since I popped it out it's not here anymore. ठीक है. And if I git stash apply which is not removing it from the list, and here मैंने कर दिया ये वाला first वाला. ओके मैंने ऐड ही नहीं किया था. ग्रेट. अगर मैं करती हूँ इसे अभी, तो हाँ वो मैंने अप्लाई किया. यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया स्टैश. डोंट बी कंफ्यूज्ड, इट्स जस्ट बिकॉज यहाँ और कोई स्टैश बची नहीं है, तो आई डोंट रियली नीड टू मेंशन विच स्टैश. ठीक है, बट फॉर योर सेक यू कैन ऑलवेज मेंशन इट. बट अब बताओ मर्ज कॉन्फ्लिक्ट क्यों आ रहा है? you've learned so much right over the past 2 days कि क्या है मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स एंड स्टफ. तो बेसिकली मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स ना यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो इन VS Code. like if I do compare changes, so the thing was in my hobby wala, here there was a break, like there was a new line, but in my first wala there's a sentence. So git is like तुम्हें आप line चाहिए first चाहिए, तो बताओ, right? तो वो करने के लिए I'll just accept both changes, I'll fix it however I want and I will save it. cool. तो अगर मैं इसे commit कर देती हूँ as stashes, तो ये मेरी सेव हो गई एंड मैंने यहाँ पे एक स्टैशेस भी आ गया. सही. तो अब बताओ, ये तुम लोग को समझ में आया ही नहीं, स्टैश क्यों होता है, क्या होता है, कुछ पूछना हो? मैम बस एक डाउट था. हाँ बोलो. आप अपना गिट का थोड़ा ऊपर कर सकते हैं, मतलब स्क्रॉल अप कर सकते हैं उसमें. या श्योर, बताओ कहाँ. हाँ, आपने गिट स्टैश अप्लाई किया, उसके पहले आपने गिट ऐड क्यों किया, मतलब उसकी क्या जरूरत थी? लाइक ये था कि ना वो यहाँ पे सेव नहीं हुआ था, तो इट वाज लाइक योर लोकल चेंजेस वुड बी ओवर रिटन. तो इट वुड बी लाइक अगर मैं वो उसे अप्लाई कर देती तो ये वाला चला जाता बिकॉज आई डिडंट सेव इट आफ्टर अप्लाइंग इट. ऐसा था. तो इट वाज अ बिट कंफ्यूज्ड कि क्या चल रहा है. तो प्लीज कमिट और स्टैश देम, ऐसा चल रहा था. तो या तो आई हैड टू लाइक ऐड दिस अगेन, और मैं इसे वापस स्टैश कर देती तो वो सेव्ड रहता. ठीक है. तो अगर आप ऐड नहीं करते तो माय हॉबीज इंक्लूडिंग वो वाला जो लाइन था वो नहीं आता, वो सेव नहीं हाँ होता. लाइक हाँ वही, वो कंफ्यूजन सी हो गई थी गिट को, तो इसीलिए इट वाज लाइक सेइंग कि यहाँ पे कुछ है एरर, तो देख लो तुमने कुछ सेव नहीं किया वैसा. राइट. तो यहाँ पे एक बार वापस पीपीटी पढ़ लो, लाइक क्लियर कर लो. Ma'am, pop and apply both are same. There's a difference. See, git stash pop lets you remove the changes from your stash and reapply it. Right, you applied it. But git stash apply lets you reapply the changes while still keeping them in your stash. तो वो जो list है ना, वहां से वो फिर भी रहता है. Like okay, let's just show you. कहाँ गया मेरा stash? यहाँ मैंने pop किया, तो ये जो hobby and first था, इसमें से hobby चला गया because I popped hobby वाला out. Now I applied first वाला, कहाँ गया? Apply first, right? ये वाला 0 वाला first था. तो since I've applied it, let's check if it's still in our stash. See, it is still in our stash because I've just applied it. I haven't popped it out. Okay. So that's the difference. हाँ बोलो.
आपने दो स्टैश बनाया, तो पहला वाला बनाया तो उसका नाम stash@1 से आया, और जो दूसरा क्रिएट हुआ उसका stash@0 से आया। तो ये कोई पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो करता है कि कोई रैंडम नेम मिलते हैं? हाँ सी दैट्स द थिंग। तो जब वो शुरुआत में बनता है ना तो वो 0 ही बनता है। रुको दिखाती हूँ। हाँ लाइक पहले जो बनता है, कहाँ गया? पहले तो आपने हॉबी हॉबी पहले क्रिएट बनी किया थी, था। राइट? हॉबी पहले बनी थी, तो हॉबी ओरिजिनली होती @0, बट देन फर्स्ट भी बन गई, तो हॉबी हैड टू बी मूव्ड अप, तो वो बन गई फिर 1 एंड फर्स्ट बन गया 0। अगर मैं एक और ऐड करूं, ठीक है, तो दैट विल बिकम 0 एंड देन फर्स्ट विल बिकम 1 एंड हॉबी विल बिकम 2। इट्स लाइक अ लिस्ट, ठीक है, लाइक यू आर स्टैशिंग इट ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। ओके, ओके मैम। जैसे मान लो अभी मैंने हॉबी निकाल दी, यहाँ पॉप कर दिया था, तो वी हैड ओनली 0 लेफ्ट, तो इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट। ठीक है, तो और कुछ? ऑल क्लियर? ओके, लेट्स मूव ऑन टू वन मोर थिंग। ये मैं कंपैरेटिवली तुम्हें जल्दी बताऊंगी, अगेन बिकॉज वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम एंड यू डोंट नीड टू नो दिस अ लॉट, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, बट हाँ वील सी इफ इसका डेमो कराना है नहीं। तो यू लर्न अ लॉट अबाउट रीबेसिंग टुडे, राइट? कैसे आप अपनी हिस्ट्री को लीनियर कर सकते हो, कैसे उससे ज्यादा क्लीन कर सकते हो। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट हिस्ट्री मॉडिफिकेशन। तो अब स्क्वॉशिंग इज अ पार्ट ऑफ दैट, जो रीबेस के इंटरैक्टिव मोड में आता है। तो द थिंग इज रीबेस इज अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, सो दे गिव यू लॉट ऑफ ऑप्शंस दैट यू कैन डू। यू कैन आइदर डिलीट अ कमिट, उसके लिए होता है ड्रॉप, और यू कैन स्क्वॉश कमिट्स, उसके लिए होता है स्क्वॉश। तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस आर अंडर रीबेस का इंटरैक्टिव मोड। ठीक है, if you wanna see what squash looks like, I'll just show you. It's literally what it means. हाँ, this one. क्या ही spelling लिखी है, but हाँ, ये वाला देखो। If you can see this, यहाँ 3 commits थी, और मुझे ये 3 चाहिए ही नहीं. They're not important. I want them to be squashed into 1. तो मैंने उन्हें join करके 1 बना दिया. This is exactly what squash does. ठीक है, तो इसमें इतना वो deep जाने की जरूरत नहीं है. Wait, हाँ. तो squash is a keyword which I will show अभी. It's not a command, ठीक है? It's in the interactive mode of git rebase. वो मैं तुम्हें दिखा दूंगी. तो it shows you how to squash all the previous commits into 1. ये मैं तुम्हें अगर चलो दिखाई देती हूँ. To squash the last 3 commits, you start an interactive rebase mode, ठीक है? Head से लेके third last commit तक. वो मैं बताती हूँ कैसे. यार ये ना समझाना मुश्किल है, मैं दिखाई देती हूँ एक बार. तो अभी if I clear this, git log करा मैंने, यहाँ पे I have 3. तो let's just keep it simple. मैं इन दोनों को squash करके बताती हूँ into 1. I'm like मुझे इतना चाहिए ही नहीं, मुझे बस यहाँ लिखा होना चाहिए squashed. ठीक है, I want 1 commit instead of these 2. तो what I can do is git rebase I. This is for interactive. ठीक है, and ये तो मैंने head पे रखा. Head is your last commit which is your stashes. ठीक है, तो I'm starting my rebase from head to the second last commit. Second last is what? Added full name. ठीक है, अगर मैं third last करती तो मैं 3 लिखती, अगर मैं fourth last करती मैं 4 लिखती. It's on me. तो अब मैंने कर दिया till 2 because I just want these 2 here. And यहाँ पे ये symbol मत भूलना, tilde वाला. तो head to second last. अब मैं enter कर गई rebase mode and this is my again Vim editor that I told you guys about. Right, तो यहाँ पे you can see those 2 commits that you want to squash. एक तो added full name and एक stashes. तो अब मैंने सोचा इनको squash कर देते हैं because I don't think they're important enough. तो यहाँ पे you can see all the commands that rebase gives you. ठीक है, एक तो pick. You will have to pick one command which is use it and then squash the other one onto it. ठीक है, एक बार read कर लो इस वाले को. We then mark the recent commit as pick and the other 2, यहाँ पे इस case में other commit as S to be squashed. ठीक है, and then we have to edit the commit message which I will show you. Again, तो एक होता है pick जो आप करोगे और एक होता है squash जो आप करोगे. But there are other things you can do in rebase like drop, which is just delete the commit. ठीक है, you can reword the commit, you can edit it. Reword is like commit amend message type. ठीक है, वो सब छोड़ो, I'll just tell you squash का.
तो मैंने ये कर लिया यहाँ पे पिक और मैंने इसे कर दिया स्क्वॉश, यहाँ लिख दिया स्क्वॉश, यू कैन ऑल्सो राइट एस, ठीक है। तो हियर यू कैन सी एक था पिक और एक था, आई एम स्क्वॉशिंग दिस वन ऑन टू दिस बेसिकली, ऑलराइट। एंड देन now it's giving me another Vim editor कि you have two commits, those two commits have two different commit messages, so which commit message do we use? Again, Git is confused because it needs to be told everything. तो what I'm going to do is यहाँ पे मैं एक commit message लिख सकती हूँ, तो insert mode में आ गई, मैंने यहाँ लिख दिया squash commits, फिर इसको मैंने हटा दिया, या तो हटा दो या hash कर दो, again hash will be ignored, काफी है, तो कर दिया सेव। तो अब यहाँ आ जाता है सक्सेसफुली rebased and updated, cool. Now if I go to my git log, you'll see just one commit, तो वो जो पिछले के दो थे they've been squashed। तो उसमें क्या होता है ना कि it cleans your commit history, क्योंकि बहुत unnecessary commits हो, like मान लो एक मैसेज है fix typo of the message, added info to the message, like ये सब if I am working on it, I don't need to know it, right? I can just provide a clean कि हाँ ये सब मैंने एक साथ ही कर दिया कि squash commits। तो ये है मेरा way of cleaning the history, like you've seen यहाँ पे instead of two different commits I have an entirely new commit, ठीक है। यहाँ पे commit message का वो देखो B20CA, यहाँ पे I have an entirely new one which is 286, ठीक है। So this is what squashing commits does। तो again ये वाला एक बार पढ़ लेना, I've shown you तो you'll know what this is, but again chat में कुछ हो तो बताओ, anything that wasn't clear। हाँ, तो people asking कि what exactly is squashing, बस वही कि I'm cleaning my history। यहाँ पे जैसे तीन थे and all three are unnecessary, they're almost the same thing, I can make it one commit, I don't have to tell everyone कि मैंने particularly क्या किया हर चीज में, तो I can just make this one commit उसके लिए, ठीक है। And when you are dropping a commit, like someone asked, yes, you also remove the changes, it's not just that you are dropping it from history। तो हाँ, और कोई डाउट? आंसर कर ही रहे हैं मेंबर्स इसमें, कुछ और हो तो पूछ लो। So there I are think three we things you want learned. to the next topic हाँ, then. all right. So एकाग्र you can take over. ये बस Am I audible? देखना एक बार। Yeah, audible. Okay. All right. Is the screen visible? Yeah. Okay, so starting with git reset. What is git reset? Git reset just takes you several moves you back to a particular commit that you want to, right? For example, you have made several commits and you want to move to a particular commit. There is the parent, some parent of head, where your head and a branch ref is currently pointing to. If you want to move back, you can use git reset, right? So it's pretty clearly written here. There are several options for the git reset command, like hard. What hard does is it also interferes with your working directory, or it also makes changes to your working directory and the index up to that particular commit. So both of your working directory and index are changed. In the mixed option, the default options, only the index is changed. So you are brought back to the staging area, but your working tree is left untouched. And in soft, both the index and the working tree are left alone. So only your refs are moved back to that commit.
right? So let me, okay, we are on VS Code right now. So I have made for every line that I have added, I have made subcommit. See, right, line 4, line 5. So for each of this, I have made a commit. Now, for example, what if I want to move to this commit, right? I am in 5 right now, and I want to move to this particular commit. What I'm going to do? So I'm going to do a git reset. Git reset. Let's start with the default version, that is mix. So for the default options, we don't need to specify it. We just going to do a git reset, and I'm moving back my parent, moving my head to its first parent. So Right? could you please hide the message that you're sharing your screen, because we Oh, aren't sorry. see the code. Okay. So I moved my head to its parent. So let's see now. Right. So I moved my head to its parent. That was line 4. So now I am in the staging area of this particular commit. Right. I'm on the staging area of this particular commit, and as you can see, it is not staged right now. So the index has been deleted for this particular commit. Now I am at, okay, now the head is at line 4. Line 4 was parent of line 5, right? So we have one commit down right now. Now we can also, using The fifth the commit sort was option. deleted. No, yes, it got deleted, and it using the mixed option, it brought us back to the, we went one commit down, right? So it brought us one commit down and to the stage area of that commit. So It also deletes the changes which we made no, in the I'm going to tell you that, right? अभी तो हमने mixed option यूज किया है ना केवल, जो डिफॉल्ट था, तो मिक्स्ड वर्किंग ट्री, जैसे मैं बोला वर्किंग ट्री पे तुम्हारे कोई इफेक्ट नहीं डालता है, वो बस स्टेजिंग एरिया तुम्हारा उस पर्टिकुलर कमिट तक डिलीट कर देता है। तो हमारी जो मैंने यहाँ पे कमिट की थी लाइन 4 पे, उसके अनस्टेज्ड एरिया पे है इस समय हम, राइट? हमारा लाइन 5 तो वैसा का वैसा है ना, ये कहाँ डिलीट हुआ अभी दिखाता हूँ। सर अनस्टेज्ड मतलब मतलब जैसे गेट ऐड डॉट करके करते हैं तो स्टेज ट्रैक होने लगती है ना, अनस्टेज। तो बस ऐसा मतलब ये हुआ है कि मॉडिफिकेशन दिखा रहा है कि मॉडिफाइड है, लेकिन अभी वो स्टेज नहीं है, ठीक है, अनट्रैक्ड ओके है। सर, यस सर। तो अब मैं, अभी हम कहाँ पे हैं? अच्छा, अब मैं मतलब लाइन 4 पे हूँ ना, तो मैं अब एक और कमिट पीछे जाता हूँ हेड के, मतलब इसके पेरेंट पे जाता हूँ। अब सॉफ्ट ऑप्शन मैंने यूज किया, तो देखते हैं क्या होता है, राइट राइट। तो ये पहले का दिखा रहा है, ये अभी का देखो स्टेजिंग एरिया में है, तो इंडेक्स को कोई फर्क नहीं पड़ा, राइट? इंडेक्स फॉर दिस व्हाट वी डिड हियर, द इंडेक्स इज एज इट इज, तो ट्रैक में लग गया, मतलब स्टेज थी हो गई थी। मिक्स्ड में क्या हुआ था कि हम अनस्टेज एरिया में पहुंच गए थे इस कमिट के, बट हमने यहाँ से जब सॉफ्ट करके इस कमिट पे गए तो हम उसके स्टेज एरिया पहुंच गए, तो इट्स शोइंग दैट फाइल हैज बीन मॉडिफाइड, राइट? तो एक और कुछ डाल देते हैं अभी के लिए। तो न्यू कमिट पे हम, तो देखो लाइन 4, तो लाइन 4 यहाँ से ये कमिट डिलीट हो गया, हम इस कमिट के स्टेज एरिया पहुंचे, क्योंकि हमने सॉफ्ट ऑप्शन यूज किया था। तो ना इंडेक्स को कोई फर्क पड़ा, ना वर्किंग ट्री को कोई फर्क पड़ा। अब हार्ड देखते हैं। ये ना तो नहीं देगा। ठीक,
अब वर्किंग ट्री भी डिलीट हो गई मेरी। स्टेजिंग एरिया देख लेते हैं, राइट। तो स्टेजिंग एरिया भी कुछ नहीं है, मेरा इंडेक्स भी डिलीट हो गया और मेरी वर्किंग ट्री भी डिलीट हो गई। लाइन 4 और लाइन 5 भी डिलीट हो गई। तो हार्ड रीसेट दोनों को अफेक्ट करता है। मेरी वर्किंग ट्री भी डिलीट हुई, इंडेक्स भी डिलीट हुआ, और मेरे जो हेड है वो अपने पेरेंट पे पहुंच गया। तो गिट लॉग लाइन 3, राइट। तो हम लाइन 3 पे आ गए और मेरी चेंजेस भी डिलीट हो गई, और अभी मैं मतलब कुछ नहीं पे हूँ, राइट। नाउ गेट रिवर्ट रीसेट समझ में आया एनीवन? इज इट क्लियर? सर रिवर्ट एक डाउट था, अगर हम लोग जब रिवर्ट करते लाइक हार्ड या मिक्स्ड या कोई भी रहता है, तो क्या वो कमिट जितने रहते हैं क्या वो पूरी हिस्ट्री से डिलीट हो जाते हैं, मतलब किसी को पता हाँ नहीं चलेगा हाँ कि वो कभी कमिट हाँ हुआ था? हाँ, आप तो हिस्ट्री डिलीट हो जाती है। ओके, थैंक यू। So you just move to the whatever commit or whatever parent, whatever ancestor your current refs are, right? Head ref और तुम्हारा branch का जो ref है वो दोनों उस commit पे मतलब चले जाते हैं जिस commit पे तुम ले जाना चाहते हो। तो तुम्हारी obviously history delete हो गई, तुम्हारे जो tips है वो particular commit पे जहाँ तुम उसको पहुँचा दिए। तो सॉफ्टवेयर मिक्स्ड करने से जो लिस्ट बनी थी वो तो उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आए, तो नहीं, फिर चेंजेस थे इसमें, नहीं, but जो स्टेज थी, इसमें स्टेज नहीं थी। हाँ वो चेंज था, बट वो जो वर्ड्स लिखे थे मतलब लाइन 1 लाइन 2 लाइन हाँ, तो वर्किंग ट्री एज यू कैन सी कि ये भी वर्किंग ट्री को कुछ नहीं कर रहा है और ये भी वर्किंग ट्री को कुछ नहीं कर रहा है। वर्किंग ट्री को बस ये हार्ड रीसेट अफेक्ट करता है ना, तो मेरा हाँ वो तो सर लिखा तो ही रहेगा। हाँ सर, तो वो जो वर्किंग ट्री को इफेक्ट नहीं हुआ है, तो फिर ये कैसे पता चलेगा कि लाइन 5 कौन से कमिट से आया, मतलब कौन से कमिट से सेव हुआ, क्योंकि वो कमिट नहीं तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रीसेट? तो रीसेट इसीलिए करते हैं हम। और फॉर एग्जांपल मैंने कुछ कोड लिखा, राइट, और मैंने उसके लिए कमिट्स कर दिए हैं, लेकिन मुझे अब वो कमिट नहीं करने चाहिए थे, या तो मुझको अभी जो मैंने कोड लिखा है उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, राइट, या मुझे कुछ करना है, मुझे अपने मतलब मेरा काम तो चाहिए, लेकिन मैंने जो कमिट कर दिया है वो नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, हो सकता है कुछ एडिशन डिलीशन कुछ भी करना हो मुझे, तो मैं बोलूँगा कि मुझे अभी कमिट जो मैंने कर दिया वो छोड़ रहने दो, मैं कुछ चेंजेस कर लूँगा फिर कमिट करूँगा। तो बस मैंने कमिट डिलीट कर दिए जो मैंने फालतू किए थे। सर वो Right, समझ अगर में आया, सॉफ्ट बट वो जो लाइन 5 वाला जो है वो कहाँ सेव हुआ, वो कैसे पता चलेगा कि वो सेव हुआ कि नहीं हुआ अब तक? तो मैंने कमिट डिलीट कर दिया तो मेरी डिलीट हो हिस्ट्री गया ना। डिलीट हो गई ना, राइट। हाँ मेरी कमिट डिलीट हुए, बट जो हमने चेंजेस किए फाइल में, जैसे कमिट 5 लाइन 5 वाला कमिट डिलीट हुआ, पर जो लाइन 5 हमने चेंज किया था अपनी फाइल में वो तो रहेगा ना, वो भी डिलीट हो जाएगा। क्या डिलीट हो जाएगा? जो चेंजेस किए चेंजेस चेंजेस मैंने मिक्स्ड और सॉफ्ट अगर मैंने रीसेट किया है तो चेंजेस मेरे प्रेजेंट रहेंगे, उसमें कुछ नहीं होगा। और अगर हार्ड करेंगे तो जो चेंजेस किए वो भी डिलीट हो जाएंगे। हाँ, वो वर्किंग डायरेक्टरी भी तुम्हारी डिलीट कर देता है उस कमिट तक। अगर सॉफ्ट से हम पीछे गए हैं तो फिर आगे आ सकते हैं क्या? आगे अभी अभी तुमने कुछ अभी रीसेट मतलब पीछे जाओगे, अभी आगे तो फिर तुम पे डिपेंड करता है ना, तुम क्या मतलब करोगे। सर अगर सॉफ्ट से हमने कुछ कमिट किया था और फिर सॉफ्ट से हम एक स्टेप पीछे चले गए, तो अगर हम फिर आगे आने चाहे तो आ सकते हैं कि हमें फिर से कमिट करके ही मारना? नहीं, वो हिस्ट्री डिलीट हो गई, वो आगे कैसे आओगे तुम, राइट। सर, तो अभी लाइन जो है वो एडेड और कमिटेड नहीं है, राइट? अगर हमने उसका कमिट डिलीट हाँ, नहीं देखो, अगर मैंने मिक्स्ड यूज किया है, राइट, तो अनस्टेज एरिया पहुंच गया, बस मेरे पास जो चेंजेस थे वो तो पूरे के पूरे हैं, अब मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। मैं उसको स्टेजिंग एरिया में डालूं, कमिट करूं, या कुछ ना करूं, कोई अपने चेंजेस कर दूं ना। अगर मैंने सॉफ्ट किया है तो वो स्टेजिंग एरिया में आ गई, मेरे इंडेक्स में फाइल आ गई है, तो अब मैं उसको कमिट कर सकता हूँ। यहाँ से मैं उसको कमिट कर सकता हूँ, यहाँ से मैं उसको स्टेजिंग एरिया पे मुझे लाना पड़ेगा, फिर कमिट करूँगा।
और यहाँ पे मेरा सब कुछ डिलीट हो गया है उस ओके सर, पर्टिकुलर समझ में आ गया। git revert. What git revert does is it takes you, it undoes a particular commit and rewrites it as a new commit. तो जैसे मुझे कोई पर्टिकुलर कमिट थी, राइट, तो ये कमिट थी। तो मान लो मुझे ये कमिट अब चाहिए नहीं, आई डोंट वांट दिस कमिट एनी लॉन्गर, तो मैं क्या करूँगा? तो उसके लिए कमांड है गेट रिवर्ट और कमिट आईडी लॉग से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो इस पर्टिकुलर कमिट मुझे ये पर्टिकुलर कमिट नहीं चाहिए, तो मैं इसको रिवर्ट कर देता हूँ जो मैंने अभी कमिट किया था, राइट। तो ये मेरा जो मैंने रिसेंट कमिट किया था लाइन 4, वो उसका चेंज खत्म हो गया है, ये खत्म हो गया यहाँ से। और गेट रिवर्ट डज इज वो तुम्हारी बस गेट रिवर्ट क्या करता है, तुम्हारी देखो जो हिस्ट्री थी कमिट की वो रही, गेट रिवर्ट जस्ट इनवर्स द कमिट। तो यहाँ पे जैसे वो नई कमिट डाल दी इसने, ये जो पर्टिकुलर कमिट थी, ये कमिट हैश जो था वो रिवर्ट कर दिया गया है और ये एक नई कमिट आ गई। दैट्स व्हाट गेट रिवर्ट डज। वो एक कोई पर्टिकुलर कमिट पे जाके तुम उसको अंडू कर सकते हो और उसकी एक नई हिस्ट्री आ जाएगी, तो तुम्हारी कमिट की हिस्ट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। Yeah. Any questions? सर कमिट की हिस्ट्री में चेंजेस हुए तो एक नया दिखाने लगा कि जो हमने चेंज करके रिवर्ट करके किया था वो। Get revert is inverse commit. तो मेरी कोई कमिट लाइन 4 थी, मुझे ये लाइन 4 नहीं चाहिए है, मतलब मुझे बस इसकी हिस्ट्री तो चाहिए है कि मैंने लाइन 4 मैंने डिलीट किया, बट मुझे लाइन 4 अपने फाइल में नहीं चाहिए, बट मुझे ये हिस्ट्री चाहिए कि मैंने ये चेंज किया है, कि मैंने फॉर एग्जांपल मैंने कोई कोड लिखा, मुझे वो कोड गलत है, उसमें बग था, कुछ भी था, तो मैं वो पर्टिकुलर कमिट को अंडू कर दूंगा उसके बाद, बट मुझे उसकी हिस्ट्री चाहिए कि ये जो मैंने मतलब ये जो कमिट मैंने डिलीट किया है उसकी हिस्ट्री मुझे चाहिए। तो गेट रिवर्ट इज जस्ट इनवर्स ऑफ कमिट। तो इस कमिट का इनवर्स क्या था कि ये कमिट हट जाएगी, इसकी हिस्ट्री रहेगी और एक और नई हिस्ट्री ऐड हो जाएगी कि ये कमिट इनवर्स किया गया है, ये कमिट रिवर्ट किया गया है, ये पर्टिकुलर कमिट, राइट। ये तो ये कमिट जस्ट रिवर्ट हो गया।